Namaskar, friends. This is Vinod Thakkar, founder and CEO of Square Feet India and chairman Square Feet Foundation. आप सबका स्वागत है ब्रोकर की पाठशाला सीजन 2 and session 2. We are coming live from city of Gujarat, an unbelievable, amazing city, Ahmedabad. And I am very happy to have today with me two very prominent Gujarati leaders. You know, Gujarat is a state of great leadership. Mr. Praveen Bavadia from City Estate Management and our very senior developer, Mr. Suresh Patel, President of Naredco Gujarat. Welcome both of you. And as all of you know that the broker की पाठशाला का जो मकसद है वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जो ब्रोकर फ्रेटर्निटी है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने की, उनके लिए रियल एस्टेट के लगती जितनी भी नई जानकारी है आप तक पहुंचाने की, और हम सब साथ में मिलकर एक अच्छा नेटवर्किंग कर सके और हम सब अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, यही मकसद है ब्रोकर की पाठशाला का। हर सेशन की तरह इस सेशन भी हम हमारी शुरुआत प्रेयर से करेंगे। So I want all of you to please join me in the prayer. Gurur Brahma, Guru Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति। Thank you, friends, and welcome back. Every Friday, like a Bollywood Busters, this Friday we are going to have a great session with two great personality with me. Let me first, and this is the first time in Broker Ki Pathshala, we are being little innovative. As I said, this is the first time we are going to talk about city also. Though we will be having a great journey of a realtor in that particular city, in Ahmedabad, we are going to share the journey of a great Praveen Bavadia. But before that, we have amongst us a great personality from Gujarat, and in particularly from Ahmedabad, Mr. Suresh Patel, who is the MD of Surya Group. He has been a great contributor to the real estate industry, in particularly Gujarat, because he is the past president of GAHED, the Gujarat Institute of Housing and Estate Developers. Later became the chairman of CREDAI Gujarat. He is the founder secretary of Sharda Dham, chairman of Vishwa Umiyadhan Project Development. He is currently a director of Gujarat State Road Development Corporation and currently the president of Naredco Gujarat. His contribution to Gujarat real estate is amazing because me personally, I have been listening to him, interacting with him at different forums in Gujarat for last 15 years. He is, I would say, a great brand ambassador of Gujarat, and especially he has been invited by UK and USA in the team of our Prime Minister Narendra Modi to promote Gujarat and bring a lot of investment across the world. His contribution as a social is amazing. He has a special place in his heart for the children. He is a strong opposer of child work, especially in construction industry. He has been associated with many social organizations, and he is somebody who has a sense of belonging for Gujarat, and in particularly Ahmedabad. He has been working as a developer for more than 3 decades. And today he is going to share with us about the city, the capital of Gujarat, not Gujarat, but it is a Manchester city of Gujarat, I would say. Though the capital is Gandhinagar, but most of the real estate construction activity is happening at a rapid speed in Ahmedabad. So we are going to interact with Suresh Bhai to talk about what is Ahmedabad city, what kind of opportunities are available for real estate, what kind of infrastructure is coming,
and how active and what kind of rules and regulation in Gujarat, if some real estate agent want to work, if any developer want to come and work, and if somebody want to invest in real estate in Gujarat, I think Suresh Bhai is going to give us amazing tips about the city. So let's have a city tour of Ahmedabad from great Suresh Patel. Suresh Bhai, welcome to you once again to Broker Ki Pathshala. Let me ask you a very simple question. How do you define Ahmedabad? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस फोरम में पूरे राष्ट्र के सम्मानीय जितने भी ब्रोकर से उनके साथ मिलने का ये मौका दिया। और आप जानते हैं कि कोविड के माहौल में सभी लोगों को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप प्रत्यक्ष ही सही मगर ज्यादा क्लोज आपको फील करता हुआ विनोद भाई, और बहुत अच्छा लग रहा है। और आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू प्रवीण भाई की उनकी वजह से आज दोबारा आपसे मिलने का मौका प्राप्त हुआ है। सभी दर्शक जितने भी आप देख रहे हैं कार्यक्रम, सभी को मैं अहमदाबाद की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे आपने बताया हल्का सा छोटा सा टूर हम अहमदाबाद का कर लेते हैं, और उसके साथ साथ रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव किस तरह से हम अहमदाबाद को देख रहे हैं, गुजरात को देख रहे हैं, उसकी भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। छोटा सा मैं पुरानी बात बताऊं तो इट्स अ वेरी 14th सेंचुरी में एक्चुअली आशा भील ने यहाँ पे अहमदाबाद की स्थापना की थी, जिसका उस वक्त नाम था आशापल्ली। Yes. उसके बाद सोलंकी राज आया और सोलंकी राज ने इसका नाम कर दिया कर्णावती, यानी आप आशापल्ली करो कर्णावती करो। मगर 15th सेंचुरी में जब अहमद शाह सुल्तान ने इसको अहमदाबाद नाम दिया, तभी से लेके आज तक अहमदाबाद, और गुजराती में हम प्यार से बोलते हैं अहमदाबाद नाम उसका है। तो आशापल्ली से लेके कर्णावती से लेके अहमदाबाद, उसकी मंजिल बहुत दूर है, अभी और भी ज्यादा मंजिल बनानी है, मगर उसका जो पाथ है वो बहुत ही अट्रैक्टिव रहा हिस्टोरिकली, और उसका बहुत सारे चीजें हैं जिसकी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। 1573 में उसके बाद मुगल बादशाह ने भी इसको टेक ओवर किया था। 1630 में मराठा राज भी यहाँ आ गया है। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी यहाँ पे था, और 1917 में महात्मा गांधी जी ने जब सत्याग्रह की लड़ाई शुरू की, तब से लेके साबरमती आश्रम जो हम देख रहे हैं वो भी स्वतंत्र सेना के बहुत बड़े संघर्ष का साक्षी रहा है। दांडी यात्रा भी अहमदाबाद से निकाली गई थी, और उसके बाद 1947 में दिस वाज अ पार्ट ऑफ अ मुंबई स्टेट। Yes. और उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आए। गुजरात स्टेट जब बना तब 1960 में अहमदाबाद वाज द कैपिटल ऑफ गुजरात फर्स्ट में। Yes. उसके बाद 1970 में गांधीनगर बना। तो एक्चुअली आज इतना लंबा 14th सेंचुरी से लेके अभी हम देख रहे हैं 21st सेंचुरी है, तब तक की उसकी मंजिल बहुत है। बहुत सारे शासक आ गए, और अहमदाबाद आज रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत बड़ा नया कायम करने जा रहा है। वंस अपॉन अ टाइम अहमदाबाद वाज फेमस एज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे इतने बड़े टेक्सटाइल पार्क थे, और आज भी टेक्सटाइल की वही फ्लेवर यहाँ पे है। बहुत सारे मिल तो अभी रियल एस्टेट वालों ने, हम सब ने मिलके उसको स्काई स्क्रैपर्स बनाना शुरू कर दिया है, मगर फिर भी टेक्सटाइल की फेवर है। और अहमदाबाद में नॉट ओनली द टेक्सटाइल, बट उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल हब भी है, मेडिकल टूरिज्म भी बहुत सारा है। और रियल एस्टेट सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो इट इज मोर देन 70,000 करोड़ रुपीस का यहाँ का पूरा जो गुजरात का टर्नओवर है, उसमें से मोर देन 1/3 इज ओनली अहमदाबाद। तो ये बहुत सारी चीजें, यानी पोल से लेके हेरिटेज संस्कृति से लेके फार्म हाउस तक का यहाँ का है मार्केट। और उसमें अहमदाबाद को अगर मैं देखूं तो मानिक चौक, आश्रम रोड, सीजी रोड, उसके बाद रिंग रोड और नया रिंग रोड, यानी किसी भी मेट्रो सिटी में वर्ल्ड में इतने ज्यादा सीबीडी चेंज नहीं हुए हैं। तो बदलते हुए सीबीडी की तासीर भी अहमदाबाद एक नई आयाम है। और आज का जो माहौल है उसमें पुराने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, मगर पुराने स्ट्रक्चर्स की और हेरिटेज की बात हम बाद में बात करेंगे। मगर रियल एस्टेट सेक्टर में पुराने जो थे, जिसको भद्र का किला बोलते थे, 3 दरवाजा बोलते थे, अडालज की वाव है, बहुत सारे हेरिटेज सैंपल हैं। और उसी के साथ साथ हठी सिंह की वाड़ी, जिसको जैन टेम्पल बोलते हैं, वो सब स्ट्रक्चर, झुलता मीनारा, सरखेज का रोजा, रानी की वाव, ये सब चीजों के साथ साथ आज नया जो रिवर फ्रंट है, दैट इज अ यूनिक इन एनी मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। और जो काकरिया लेक 550 इयर्स पुराना था, उसकी भी नई पहचान है। और सबसे हमारी जो मजबूत पहचान है वो महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई के संघर्ष की कहानी है। और आज की तारीख में वही संघर्ष की कहानी
इंडियन पॉलिटिकल फलक पे नरेंद्र भाई मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर एज अमित शाह वही कहानी आज गुजरात और अहमदाबाद रिपीट कर रहा है. सो वी आर रियली हैप्पी विद दिस सिटी. ये सिटी की बहुत सारी हिस्ट्री भी है और सुपर फ्यूचर भी इसका इतना ही मजबूत है. Excellent. I think excellent introduction and such a vibrant city with great leadership, especially at a national level. I think whenever anybody talk about, I always tell people, any international guest is coming to India, they have to come to Ahmedabad, to visit the Sabarmati, and that is the pride of Gujarat and especially Ahmedabad. Suresh bhai, real estate have been, transforming in Gujarat, especially in last 2 decades. I am also from Patan, so I have also regularly been connected with Gujarat real estate. जो एक टिपिकली पहले ओल्ड अहमदाबाद था, समझो जैसे आश्रम रोड वाज एज यू सेड करेक्टली, उसका सीबीडी चेंज होते जा रहा है, बट उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो रियल एस्टेट को लग के, बिकॉज जब भी प्लॉटिंग्स डेवलपमेंट हर एक जो भी आप मेट्रो बॉम्बे और दिल्ली को छोड़ देंगे तो बाकी सारे सेंटर में ऐसा हुआ कि पहले प्लॉटिंग डेवलपमेंट होता था, फिर 4 माले की बिल्डिंग बनी, फिर 10 माले की बनी, फिर हाई राइज आई. उसका कुछ स्टोरी बताइए, अहमदाबाद में कब से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, मतलब वो जो प्लॉटिंग डेवलपमेंट से लेके. अगर हम देखते हैं तो अहमदाबाद में पोर्ट जो थे वहां से लेके नारायणपुरा, नवरंगपुरा, आंबावाड़ी डेवलप हुआ. उसी के बाद नए एरियाज जो डेवलप हुए वो आपने देखा सीजी रोड के बाहर निकल के 132 फीट का रोड और यूनिवर्सिटी एरिया डेवलप हुआ. उससे आगे जब हम आएंगे तो 16 रोड डेवलप हुआ जो हाउसिंग सेक्टर्स में बहुत सारा है. उसके साथ साथ आप दूरदर्शन एरिया है, तलतेज एरिया है, बोड़कदेव है, वस्त्रापुर के मेट्रोज हैं, नया प्रहलाद नगर है, और उसके साथ साथ जो अभी जो सिंधु भवन रोड एसपीआर जो बोलते हैं वो एरिया भी डेवलप हुआ. और सरदार पटेल रिंग रोड 76 किलोमीटर लंबा जो रिंग रोड है उसी के सराउंडिंग में नए अफोर्डेबल जोन हो रहे हैं. सोबो जिसको साउथ भोपाल हम बोलते हैं वो एरिया भी बहुत अच्छा डेवलप हुआ. साइंस सिटी इज ऑल्सो डेवलपिंग ग्रेट. और अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच का जो 6 लेन ट्रैक बनने जा रहा है उससे अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों एक्चुअली एक ही सिटी बन गए हैं. और अगर रियल एस्टेट का पॉपुलेशन के साथ में मैच करूं फिगर तो आज की तारीख में पूरे गुजरात की जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 6 करोड़. और आउट ऑफ 6 करोड़ 39.52% यानी अराउंड 2 करोड़ 40 लाख लोग हैं वो 26 मेट्रो शहर में बसते हैं. आने वाले कुछ ही साल में, मैं 5 साल में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि गुजरात की जो पॉपुलेशन है दैट विल बी अराउंड 8 करोड़. और अकॉर्डिंग टू द सेंसेक्स 52% जो है वो मेट्रो सिटी में रहेगी. यानी ये 26 शहरों में 4 करोड़ लोग रहने आएंगे. तो 2 करोड़ 60 लाख से लेके 4 करोड़ तक का जो 1 करोड़ 40 लाख लोग नए रहने आने वाले हैं, दैट इज द बिगेस्ट डिमांड ऑफ हाउसिंग एज वेल एज कमर्शियल फॉर द रियल एस्टेट. क्योंकि ये जो आज की पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 80 लाख. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले 10 साल में दैट विल बी 1 करोड़ 25 लाख ऑफ अहमदाबाद. तो अहमदाबाद सिटी में इतने सारे घरों की आवश्यकता चाहिए. उसके सामने आज की तारीख में हम देखा जाए तो सिर्फ 1 लाख हाउस ऑल ओवर द गुजरात से ज्यादा नहीं बन रहे हैं, उससे भी कम है. तो वो सर्कमस्टेंसेस में रियल एस्टेट की बहुत सारी डिमांड है, नॉट ओनली द रेसिडेंशियल, कमर्शियल एज वेल एज द इंडस्ट्रियल. और जिस तरह से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है तो वो कॉरिडोर को देखते हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी दोनों साइड बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है. तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर अभी जो है उससे भी 1.5 गुना आने वाले वक्त में बढ़ेगा. लोगों को जितने घर चाहिए उसके सामने हम अभी मेरे हिसाब से 25% ही डिमांड फुलफिल कर पा रहे हैं. मेरे हिसाब से ये जो कोविड का मोमेंटम, कोविड के बाद का जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री और दूसरे इंडस्ट्री में मोमेंटम आने लगा है वो देखते हुए 2022 जब आजादी के हम 75 साल पूरे करेंगे, that time the real estate market will be booming all over in Gujarat, in Ahmedabad also. और अहमदाबाद और गांधीनगर जो डेवलप हो रहे हैं उसमें आपने जैसे बताया कि कोई भी आदमी अहमदाबाद आता है तो उसको आना पड़ेगा. तो अहमदाबाद एयरपोर्ट इज द 3rd busiest airport in the whole Indian airports. तो उस हिसाब से लोग बहुत सारे यहाँ आते हैं. अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच का जो एरिया है वो एरिया भी ज्वाइंट होने लगा है. और उसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन में अभी आने वाले कुछ सालों में देख रहा हूं दैट इज गिफ्ट सिटी, जो गुजरात सरकार भी देख रही है. और नरेंद्र भाई मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी उनका सपना था. ये फाइनेंस टेक सिटी है, उसमें कुछ एरिया ऐसा है जो एसईजेड के तौर पे डेवलप हो रहे हैं जिसमें डॉलर्स में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंटरनेशनल पाउंड में हो रहा है, रुपीस में नहीं हो रहा है. और वहां पे बुलियन मार्केट नया डेवलप होने जा रहा है. मैं देख रहा हूं कि आने वाले
वाले 5 साल में एनएससी और बीएससी के बाद थर्ड एक्सचेंज अगर होगा, अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो सेबी को डेवलप करना पड़ेगा अहमदाबाद में, क्योंकि आज भी जितने शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग हैं उसमें से 70% गुजराती लोग हैं। और जब बुलेट ट्रेन का सपना सही हो जाएगा तब अहमदाबाद और बॉम्बे की कनेक्टिविटी को देखते हुए और जिस तरह से सिटी में भी मेट्रोज आ रहे हैं, मेरे हिसाब से दैट विल बी द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी रियल एस्टेट कंसल्टेंट एज वेल एज रियल एस्टेट डेवलपर। एक्सीलेंट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब चारों ओर से बहुत फास्ट तेजी से बढ़ रहा है, बहुत फर्स्ट चीज हो रही है। जैसे गिफ्ट सिटी की आपने बात की, 2005 में वाइब्रेंट जब स्टार्ट हुआ तब से उसकी शुरुआत हुई थी और काफी प्रोजेक्ट्स वहां पे ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ऑफिस है। अब सुरेश भाई, रियल एस्टेट जो है वो हर एक स्टेट में अलग तरीके से उसकी जो एफएसआई के नॉर्म्स है, उसकी जो अप्रूवल्स है, उसके जो प्रीमियम है, वो हर एक स्टेट में अलग अलग है। तो कोई डेवलपर को अगर आना है वहां पे गुजरात में आके काम करना है तो कितना स्मूथ है? जैसे हमारे उधर मुंबई में सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में अगर प्रीमियम और प्रोसेसेस है तो सबसे ज्यादा मुंबई में है। तो गुजरात में वो इतनी स्मूथ प्रोसेस है और किस टाइप के एफएसआई के नॉर्म है? अगर कोई एक प्लॉट के ऊपर कहाँ पे कोई पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से क्या उनके अंदर चेंजेस आते हैं एफएसआई के? एज अ रियल एस्टेट एसोसिएशन में बोलूं तो एसोसिएशन की ओर से तो सभी जगह प्रॉब्लम है ही, क्योंकि हमें और भी सभी लोगों से जो प्रॉब्लम आते हैं वो गवर्नमेंट को प्रेजेंट करने ही होते हैं। तो वो तो चीज वहां और यहाँ सेम होती है, मगर गुजरात का गवर्नमेंट का जो प्रोएक्टिव एटीट्यूड है, और अभी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपाणी साहब ने इसको ऑनलाइन प्लान परमिशन 15 मीटर हाइट तक की जो है उसकी ऑनलाइन प्लान परमिशन जो उन्होंने दी है, वो दैट विल बी द वन ऑफ द एक्सेलेंट एग्जांपल फॉर द कंट्री। और मैं मानता हूं कि आने वाले 6 महीने में सारी परमिशन ऑनलाइन हो जानी चाहिए। यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर परमिशन भी आसानी से कंपेरेटिव टू अदर स्टेट मिल जाती है। और दूसरा यहाँ पे स्टैंडर्ड अहमदाबाद की बात देखें तो R1, R2, R3 एग्रीकल्चर जोन, सीबीडी जोन, अफोर्डेबल हाउसिंग जोन और ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेशन जोन ऐसे है। R1 जोन है दैट इज फ्री हाइट, यानी उसमें बहुत सारी ऊंचाई पे आप जा सकते हैं, 1.8 बेसिक एफएसआई है। R2 में 1.2 एफएसआई बेसिक है, मगर उसमें भी आप बहुत सारी हाइट कवर कर सकते हैं। R3 जो है दैट इज लिमिटेड फॉर द फार्म हाउसेस टाइप बिग बंगलोज। और जो एग्रीकल्चर जोन है उसमें अगर आप सिंपली फार्म हाउस 5000 स्क्वायर मीटर के तक बनाना चाहते हैं प्लॉट पे तो वो बन सकता है। उसी तरह यहाँ पे सीबीडी जोन है दैट इज रिलेटेड नियर टू द रिवर फ्रंट एरिया, वहां पे 5.4 की एफएसआई है। और बाकी जो एरिया है उसमें ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड जोन है, यानी सिटी में जहां से बीआरटीएस जाती है, जहां से मेट्रो रेल जाती है, वहां पे 4 एफएसआई मिल जाता है। एफएसआई का चार्जेस यहाँ पे जो है दैट इज ऑल्सो कंपैरेटिवली दूसरे सिटी के हिसाब से वहां पे भी हायर है। मगर एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि आज का अहमदाबाद का डेवलपर ऑन एन एवरेज 3000 स्क्वायर फीट से लेके 5000 स्क्वायर फीट के बीच में ही रेसिडेंशियल पॉकेट बेचता है, जो मेरे हिसाब से इतने अच्छे lucrative और लिवेबल सिटी के लिए मेरे हिसाब से this is really a most affordable price compared to any other big cities। नहीं, एकदम सही बताया आपने। जिस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में जैसे पुणे हो गया या बैंगलोर, चेन्नई, हम उसके साथ में कनेक्ट करते हैं, दिल्ली में जैसे गुड़गांव वगैरह हो गया, अहमदाबाद का जो कनेक्टिविटी है और जो खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई थिंक इतने अच्छे रोड्स, अभी मेट्रो एक लाइन मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गई है, सबसे बड़ा स्टेडियम वहां पे आ रहा है आपका, गिफ्ट सिटी इज हैपनिंग। कैन यू शेयर समथिंग अबाउट धोलेरा? धोलेरा इज आल्सो वन ऑफ द बिग टाउनशिप, इफ यू कैन शेयर समथिंग अबाउट धोलेरा। धोलेरा में भी डेवलपमेंट होगा इनिशियली, अभी एट प्रेजेंट इतना ज्यादा नहीं है, मगर बहुत सारे डेवलपर ने फ्यूचर प्लान करते हुए वहां पे जगह एक्वायर की कर दी है। मेरे हिसाब से फर्स्ट फेज जो आपका मेट्रोस का जो बोल रहे हैं दैट इज बिटवीन थलतेज टू कालुपुर एरिया तक का है। और दूसरा जो है फेज जो इसी का खातमुहूर्त अभी 4-6 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने किया है, वो दैट फेज इज कनेक्टिंग साबरमती अहमदाबाद से लेके गिफ्ट सिटी और गिफ्ट सिटी से लेके महात्मा मंदिर का कनेक्शन करता है। तो मेरे हिसाब से अहमदाबाद गांधीनगर विल डेवलप एज अ सिंगल सिटी, और वो चीज वहां पे आ रही है। मोटेरा स्टेडियम आपने ठीक बताया, दैट विल बी द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम और 1,10,000 की कैपेसिटी का, उसका हमने ट्रायल रन ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और आने वाले मार्च और अप्रैल में वी विल लाइक टू इनवाइट आफ्टर कोविड सेशन कि आप सारे रियल एस्टेट कनेक्टेड लोग यहाँ आए और यहाँ से बहुत अच्छे लाइव मैचेस देखें। दूसरा जो अहमदाबाद का एक ब्यूटी स्पॉट्स के एंगल से दैट इज गोल्फ। बहुत कम लोगों को मालूम है कि इतने सारे गोल्फ एक साथ एक ही सिटी में नहीं,
गोल्फ का अगर कैपिटल देखा जाए तो अहमदाबाद है पूरे इंडिया में। वेरी गुड। तो जो गोल्फ लवर है उनको भी है, बहुत सारे क्लब्स भी हैं यहाँ पे, तो एक्टिविटी होती है। दैट इज दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट सिटी। यानी रात को 2 बजे भी लड़की अकेली यहाँ पे स्कूटर लेके घूमती है, तो वो सिटी को डेवलप होने में कोई दिक्कत नहीं होती। और रात का जो खानी पीनी बाजार है, दैट इज ट्रिमेंडस। यानी आपको अहमदाबाद आए तो आपको करना पड़ेगा। यानी मैं जैसे बच्चन जी बोलते हैं कि कुछ नहीं, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मैं ऐसा बताता हूँ रियल एस्टेट ब्रोकर के एंगल से। अगर आपने अहमदाबाद में कुछ नहीं बेचा तो कुछ नहीं किया, तो आपने सही में कुछ नहीं बेचा। मेरा गुजराती होने के नाते, बिकॉज मुझे एक हमेशा ये चीज रही है कि अगर गुजरात के अंदर आप देख ली, कुछ सिटी को मैंने अपनी नजर के सामने देखा है, चाहे पुणे हो, नासिक है फॉर एग्जांपल, हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर, ये सारे सिटी डेवलप हुए बिकॉज वहां पे आईटीआई है। गुजरात में हम लोग क्यों इतना आईटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, ये हमेशा मेरे अंदर एक क्वेश्चन रहा है। बिकॉज इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट का प्रॉब्लम नहीं है, रोड्स इतने अच्छे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो एक फैमिली को आके वहां पे बसना है तो लाइफ एकदम पावरफुल जीने के लिए जो भी फैसिलिटीज है वो सारी चीज गुजरात में है। उसके बावजूद आईटी कंपनीज हम लोग क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे? 1995 का वक्त था कि जब एक्चुअली गुजरात में आईटी कंपनी ज्यादा आना चाहती थी। मेरे हिसाब से वी मिस दैट बस। मगर जैसे बताया कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, तो उस वक्त जो गुजरात था सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर डिपेंडेंट था। आज की तारीख में बहुत सारी आईटी कंपनीज ऑलरेडी आ गई है, मगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखते हैं अगर आप, उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट को अगर देखते हैं, चाहे मारुति कंपनी हो या बड़ी कंपनी दूसरी हो, आप फार्मास्यूटिकल को देखते हैं, मेडिकल टूरिज्म को देखते हैं, टेक्सटाइल पार्क को देखते हैं, तो बहुत सारे एवेन्यू हमने ओपन कर दिए हैं। एक्चुअली वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सिंगल बिजनेस। एजुकेशन के हिसाब से आईआईएम्स है, आईआईटी गांधीनगर है, और बहुत सारे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट अब भी हैं। और जितने भी आईएएस ऑफिसर जो पूरे विश्व में जाते हैं और पूरे इंडिया में अलग अलग जगह जॉब करते हैं, वो रिटायर होने के बाद अहमदाबाद में रहना पसंद करते हैं। तो इतना इंटेलिजेंट क्लास अगर अहमदाबाद में रहना पसंद करता है, तो मेरे हिसाब से इस शहर में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं कि जो लोगों को रहने पे मजबूर करती हैं। और आईटी भी मेरे हिसाब से आने वाले वक्त में, अभी गांधीनगर में जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं, पटनी आ गया है, टीसीएस का बहुत बड़ा कैंपस यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, तो दैट इज ऑल्सो कमिंग। यानी मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस का कॉमन कॉम्बिनेशन हो रहा है। सो आप तकरीबन 30 साल से भी ज्यादा इस इंडस्ट्री में है, तो आपने पिछले 30 साल के अंदर रियल एस्टेट का कितना ग्रोथ देखा? और स्पेशली मुझे लगता है कि अर्थक्वेक जब भी 2001 में आया 26 जनवरी को, उसके बाद में जो गुजरात का ग्रोथ हुआ है वो मेरे ख्याल से बहुत फास्ट हुआ है। तो आपको क्या लगता है, अभी भी मतलब अंडर प्राइस है अहमदाबाद, और आगे कितनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप? सबसे पहली बात मैं बताऊं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो गुजरात के ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, जो अभी तक अनटच एरिया है, दैट इज 16 किलोमीटर लंबा यहाँ का मरीन, गुजरात का जो है पूरा का पूरा पट्टा, उसमें भी गवर्नमेंट ने अभी शुरू कर दिया है बहुत सारी चीजें। तो ये सब चीजें जैसे ही टूरिज्म वो डेवलप होगा और बाकी सारी चीजें डेवलप होगी, तो मेरे हिसाब से गुजरात में ये जो बिजनेस है, तो रियल एस्टेट मार्केट अगर आप जैसे बोलते हैं, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अंडर टेबल चल रहा है, अंडर मार्केट चल रहा है। यानी इस हिसाब से आज का रेट इससे 25% ज्यादा होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। और उसकी वजह यही है कि अहमदाबादी लोग हैं, वो चाय भी आधी करके पीते हैं, तो रियल एस्टेट में भी थोड़ा सा भाव कम करने की कोशिश करेंगे। बट जैसे ही स्टेपिंग करेंगे बहुत सारे लोग, जैसे बुलेट ट्रेन आ जाएगी, तो बहुत सारे लोग, ये अहमदाबाद विल बिकम द इकोनॉमिकली बैक ऑफिस ऑफ मुंबई। एक्सीलेंट। तो बहुत सारे लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ रहना पसंद करेंगे, बुलेट ट्रेन में अप डाउन करेंगे। आपके साथ मैं आपको भी कोट कर रहा हूँ। yes, तो yes. बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि आपको गुजरात में रहेंगे, तब हमारे जो स्क्वायर फीट के रेट है वो आपके स्क्वायर फीट की वजह से मेरे हिसाब से और भी ऊपर जाने वाले हैं। बहुत अच्छे से, बहुत मजा आया सूरज भाई, आपने इतनी अच्छी तरह से सिटी को प्रमोट किया और सिटी को डिफाइन भी किया। फाइनली आई हैव वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन टू यू, बिकॉज मैं भी तकरीबन 20-22 साल से देख रहा हूँ गुजरात में। 2000 के आसपास की साल में रियल एस्टेट के जो एजेंट्स थे, ब्रोकर्स थे, प्रोफेशनल रियल्टर थे, वो बहुत कम थे गुजरात में, स्पेशली इन अहमदाबाद में थे।
और अभी पिछले 20 साल के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आया है इंडस्ट्री के अंदर, सेम विद डेवलपर ऑल्सो। सो आपको क्या लगता है कि अभी आज का जो इंडस्ट्री है, स्पेशली गुजरात में, रियल एस्टेट ब्रोकर का कितना रोल है ये इंडस्ट्री के अंदर? मैं आपको बताऊं तो जो गुजरात पब्लिक की मेंटालिटी है, तो बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है ना, तब वो आईएएस होना नहीं चाहता है। सबसे पहले वो व्यापारी बनना चाहता है। तो गुजरात के जो रियल एस्टेट डेवलपर है और दूसरे व्यापारी लोग हैं, वो व्यापारी मानस से सोचते हैं, मगर ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली बिजनेस के एंगल से डेवलप करते हैं। तो इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थे पहले, प्रोफेशनल प्रैक्टिस इतनी नहीं थी, वो लोन भी ज्यादा लेना पसंद नहीं करते थे। जैसे मानिक चौक में बैठते थे, लास्ट 10 years में, और स्पेशली आफ्टर पोस्ट अर्थक्वेक ज्यादा ऑर्गेनाइज हुए, ज्यादा प्रोफेशनल हुए, बड़ा और विजन खुला है, ज्यादा कंस्ट्रक्शन लोन भी लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। एक साथ 5-5, 7-7 प्रोजेक्ट रखना कर रहे हैं, जो पहले नहीं करते थे। तो वो चीज में उनको, जैसे दिल्ली और मुंबई और पुणे में, वो खुद अगर सभी चीज करने चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन भी मैं करूं, माल भी मैं बिकूं, तो मेरे हिसाब से ग्राहक भी उनको खुद ही होना पड़ेगा। तो उसमें से बाहर आने के लिए ये सबसे पहला जरूरी चीज था, वो दैट वाज अबाउट द मार्केटिंग। तो 10 साल में, जैसे प्रवीण भाई हैं, उन्होंने भी डेवलप किया था यहाँ का ब्रोकर एसोसिएशन जो है रियल एस्टेट कंसल्टेंट, वो भी उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो बहुत सारी चीजें हैं कि उनके एफर्ट से, रियल एस्टेट सेक्टर के एफर्ट से ये ज्यादा प्रोफेशनल चीज पे जा रहा है, और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट ब्रोकर्स का। और रेरा आने के बाद तो डेवलपर भी रजिस्टर है और रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी रजिस्टर हो रहे हैं। तो दैट विल बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी Great. for any real estate consultant. Yes. Thank you, Suresh bhai, for your time and excellent insight. And as we are going to unveil and interact with our today's Bollywood buster, Praveen Bavadia, what would you like to say about him? Your experience with him, your personal relationship with Praveen Bavadia. प्रवीण भाई को मैं मेरे अच्छे दोस्त के अलावा उनको मोर प्रोफेशनल, एंथुजियास्टिक, यंग, हेल्थ कॉन्शियस के साथ साथ वो जो प्रॉपर्टी का तालमेल बनाते हैं और जिस एनर्जी से काम करते हैं, ही इज अ रियली जेम पर्सन। और मुझे लगता है कि आने वाला जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स नए डेवलप हो रहे हैं, वो प्रवीण भाई को, जैसे आपने सही बताया, वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर देख के ही, मॉडल देख के डेवलप हो रहे हैं। और वी हैव अ गुड रिलेशनशिप, और उनका काम करने का जो तरीका है, ट्रांसपेरेंसी है, और जिस वे से वो डेवलप कर रहे हैं, आई एम थिंकिंग कि उनका जो सिटी एस्टेट मैनेजमेंट है, दैट विल गो ऑन अ ग्रेट वे। और आज मैं भी चाहता हूं कि प्रवीण भाई की जो स्टोरी है वो आपके साथ साथ यहाँ से सुनूं। सो we would like to welcome Praveen bhai and thank you very much for inviting. Thank you, Suresh bhai. And this was the first episode in terms of inviting somebody to talk about city. So for me and for Broker Ki Pathshala, this is going to be a long way in the history, that whenever after 5 years, 10 years down the line, when we speak about Broker Ki Pathshala, we will say that first time a developer who came and talk about city was Suresh Patel. So thank you for your time and आजादी की लड़ाई भी यहाँ से शुरू हुई थी। Yes. और रियल एस्टेट को ऊपर भी हम सब साथ मिलकर यहीं से ले जाएंगे। Absolutely. So thank you for your presence and your time. As a token of love and appreciation from Broker Ki Pathshala team and entire broker fraternity, we would like to present a small certificate to you for your remembrance, ताकि आप भी हमको लाइफ में याद रखेंगे कि आपने ब्रोकर की पाठशाला में आपका contribution दिया था। Praveen bhai and Suresh bhai, I am associated with Rotary International for last 25 years. Rotary is an amazing organization which do a lot of good work for the society. So this year from Rotary Club of Mumbai Dahisar and our district of Mumbai, they have commitment to feed 1 million children. So in that program we are participating, and this is a certificate of appreciation from Broker Ki Pathshala to express our gratitude to Mr. Suresh D. Patel, President NAREDCO Gujarat, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala great success. We are pleased to sponsor 100 meals under Annapurna project by Rotary Club of Mumbai Dahisar, which will provide food for the underprivileged. For your presence, we are going to contribute for the 100 children's meal. So please accept this certificate. Thank you. You may continue to be there.
when we interact with Praveen bhai. So बहुत बहुत शुक्रिया और सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. thank you, Suresh bhai. Once again, thank you, friends, for being there. And now is the time to present to you the Bollywood buster of this Friday, a great realtor from Ahmedabad city, Mr. Praveen Bavadia. He's the chairman and managing director of City Estate Management. I'm sure most of you who are into real estate have definitely met him or heard about him. So Praveen bhai, thank you very much for your kind consent to be on this Broker Ki Pathshala season 2 on second session. How are you doing? Good. Namaste. Namaskar. Thank you, Praveen bhai, for your kind time. And I'm sure, friends, this session is going to be something extraordinary. I'm sure many of you must have never heard this kind of story in your life. Many who are working in real estate and struggling or their initial day of your business, and you may be getting failures at some certain time. There may be a lot of challenges, but I guarantee you, after 1 hour, after listening to Mr. Praveen Bavadia's story, I'm sure you all are going to get inspired. आपकी लाइफ की डिक्शनरी में से फेलियर नो शब्द निकल जाएगा. You will only look for the success. So welcome once again, Praveen bhai. Praveen bhai, I want to ask you about your family. Where are you from? दो अभी आप अहमदाबाद में, लेकिन आपका बर्थ कहाँ पे हुआ? कहाँ से है आप? विनोद भाई, मेरा बर्थ एक स्मॉल विलेज, छोटा सा गांव में मेरा जन्म हुआ है. यहाँ से करीबन 400 किलोमीटर दूर जरगली गांव है, स्मॉल टाउन में. वहाँ पे तकरीबन 4000 की पॉपुलेशन है और नियर गिरगरेडा से 2 किलोमीटर जरगली गांव है. और मैं फैमिली में सबसे बड़ा हूँ. मेरा फादर एक फार्मर थे और सबसे बड़ा मैं हूँ और 2 सिस्टर और छोटा भाई. और हम लोग क्या पाटीदार समाज से आते हैं. तो फादर 15-20 बीघा जमीन, छोटा सा गांव, और प्राथमिक शाला में पढ़ाई की हमने 1 to 7 जरगली प्राथमिक शाला. एंड सॉरी, वही गांव में स्कूलिंग हुआ आपका? वही गांव में गुजराती मीडियम में. एंड देन वहाँ पे 7th स्टैंडर्ड तक था और 8th के लिए मेरे को 8th स्टैंडर्ड के लिए जाना पड़ता था वहां से 2 किलोमीटर साइकिल लेके. क्या बात? तो साइकिल लेके 9 किलोमीटर? नहीं, 2 किलोमीटर. 2 किलोमीटर, ओके. गिरगरेडा विलेज है, छोटा सा स्मॉल. और वहाँ पे मैंने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की. एंड देन बाद में मैं तूफानी था, छोटा सा था, तो मारपीट ये झगड़ा ये सब था. तो फादर ने बोला कि आपको मैं एक हॉस्टल में, जाफराबाद करके अमरेली डिस्ट्रिक्ट में एक दरिया किनारे करीबन 2 लाख की पॉपुलेशन वाला एक सिटी है. वहाँ पे हॉस्टल थी, गंगादास पुरुषोत्तम दास पारेख. वहाँ पे कुमार छात्रालय, बीच में स्कूल एंड कन्या छात्रालय. यानी कि आपको एक वहाँ पे अंदर जाने का और 6 महीने के बाद ही घर पे आने का. अच्छा, इतना डिसिप्लिन. और अपने बोलते हैं ना, जब्बा कुर्ता में ही रहने का और स्कूल ड्रेस 2 ही. दूसरा कलरफुल कपड़ा अलाउड नहीं था वहाँ पे. उस जमाने में ड्रेस रहते थे. यस 5 बजे के उठने का वो पूरा शेड्यूल फिक्स हो जाता था. तो पूरा डिसिप्लिन वहां से हम सीखे काफी. तो फादर की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो वहां पे वो टाइम पे तकरीबन साल का 10,000 रुपया फीस था, रहने का, खाने का, पीने का. 10,000 वहाँ? हाँ, 10,000 रुपीज फी ईयरली. हाँ. तो वहाँ पे मेरे को 9, 10, 11 वहाँ पे पढ़ा. एजुकेशन वहाँ से लिया, काफी डिसिप्लिन सीखे. वहाँ पे का सभी धर्म के, सभी कास्ट के लोग रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ऑल कास्ट वाले रहते थे. तो वहाँ पे स्कूल में काफी डिसिप्लिन सीखे. बाद में देन 11th में 12th मैंने मैं वापस ऊना में किया. अप डाउन करता था, वहां से करीबन 6-7 किलोमीटर था मेरे गाँव से. लेकिन आप उधर हॉस्टल में 3 साल रहे? बिकॉज मैं खुद भी हॉस्टल में रहा हूँ, तो मुझे मालूम है हॉस्टल जैसा लाइफ, मतलब जो सिखाता है ना हॉस्टल, वो लाइफ में कहाँ से भी सीख नहीं मिलती है. तो आई एम श्योर आपको हॉस्टल में 3 साल रहे तो कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स तो हुए होंगे जो लाइफ चेंजिंग होंगे. लाइफ, हाँ, काफी. वहाँ पे कैसा था कि वहाँ पे पैसा वाले के भी लड़के आते थे, छोटे गरीब लोग लड़के भी बच्चे आते थे पढ़ने के लिए. तो हम लोग वो टाइम पे तो क्या फैसिलिटी, वहाँ पे एक साथ 5-6 बाथरूम होते थे, अटैच टॉयलेट नहीं थे. तो 5 बजे उठ के लाइन में खड़ा रहना पड़ता था.
तो वो भी उसकी भी मजा थी। और हाँ, वहां पे 3 बिल्डिंग था, सत्यम, शिवम एंड सुंदरम। अच्छा, हाँ हाँ, यस। तो और पीछे कन्या छात्रालय, तो एक साथ पूरा माहौल अच्छा था। तो वहां पे काफी कुछ हम सीखे 5 बजे। और मैं एनसीसी में था 1 साल, तो एनसीसी का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो वहां पे भी एक इंसिडेंट मेरे को बना था। हाँ, वो टाइम पे मैं स्टोर मंत्री था। वहां अच्छा, पे क्या बात, हाँ, एक स्टोर था वहां पे, वो स्टोर में हैंडल करता था। तो वहां पे मेरे को, मैं लीडर, अकेले, या अकेले बाहर जाने की परमिशन थी मेरे को। क्या तो बात, वहां से मेरे को एक सोना की वीटी मिली रास्ते में से। अरे वाह, या तो मेरे पास रख ली। बाद में मेरे को, मेरा एक फ्रेंड को मैंने बोला कि मेरे को ये वीटी मिली है, तो बोले हाँ, अपने को रखने नहीं चाहिए। बाद में मेरे को कुछ डांट पड़ी, लोगों ने मेरे को, ये अध्यक्ष ने मेरे को 1-2 थप्पड़ लगाई। हाँ, तब से, आज से डिसिप्लिन, कोई भी चीज को हाथ नहीं अड़ाने का और रिस्पेक्ट से रहने का। और बाद में मैं 11 छोड़ के, मेरे को बुरा लग गया वो टाइम पे, तो हाँ, काफी सीखा। और वापस मैं आ गया मेरे होम टाउन जरगली में। एंड देन मैं हाँ, वहां से अप डाउन करता था। 12th में वहां पे शायद ही हाई स्कूल में कंप्लीट किया मैंने। हम्म, और फादर को मैं हेल्पफुल भी होता था वो खेती के टाइम पे। वो भी एक मजा आता था, वो टाइम था अपना। और करेक्ट, मैंने हाँ, एग्जाम 12th का दिया। और मेरे अंकल एक अहमदाबाद में रहते थे, बापू नगर में। इज हाँ, डायमंड डायमंड का काम करते थे। तो तभी मैंने, डायमंड का बहुत चल रहा है, हाँ हाँ, करेक्ट, डायमंड का सूरत और अहमदाबाद में काफी फैक्ट्री थी डायमंड की। तो यस, वो टाइम पे मेरे मेरे काका को बोला, मेरे को आप अहमदाबाद एक बार दिखाओ, मेरे को अहमदाबाद देखना है। तो बोले ठीक है, तुम मेरे साथ आ जाना। तो उसके साथ में अहमदाबाद आया। तो अहमदाबाद बापू नगर में वो रहते थे, ये सिटी से आउटस्कर्ट में है। जो हाँ, डायमंड फैक्ट्री वगैरह है वो बापू नगर में। बराबर, बराबर, तो बापू नगर में वो टाइम पे आया, तो वहां पे गुरुकुल आने के लिए एक बस आती थी 51 नंबर की। तो हाँ, उसने मेरे को एक 51 नंबर लिख दिया और विजय 4 रास्ता पे ड्रॉप हो जाने का। तो मैं विजय 4 रास्ता पे आके मंदिर में आया, तो बड़े बड़े इमारत देखी, बिल्डिंग देखी। मैंने बोला अपने को तो यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है और अहमदाबाद में रहना है, सेट होना है। तो मंदिर में स्वामी जी के पास आया था। हमारे गांव में क्या स्वामीनारायण टेम्पल है, तो हाँ, संतों वगैरह साल में 1-2 बार आते थे। तो अच्छा, स्वामी जी ने मेरे को बोला कि आप अहमदाबाद कभी आना, और मंदिर में अपने रहने का सब फैसिलिटी है हाँ, गुरुकुल में। जो हाँ, मेमनगर गुरुकुल है, अभी मेरे करेक्ट, ऑफिस के सामने ही है अभी भी। तो वो टाइम पे मैं आके स्वामी जी को मिला, जय स्वामीनारायण किया। मैंने बोला स्वामी जी मैं आ गया हूँ। तो बोला हाँ, यहाँ पे अभी तो जगह नहीं है, तेरे को जाना पड़ेगा एसजीवीपी, हमारी जो नई संस्था बन रही है, वहां पे तो अभी जंगल है, हाँ, वहां हाँ, पे रहने का, सेवा करने का, संतों के साथ रहने का। तो वो टाइम पे यहाँ से डेवलपमेंट नहीं था सिटी का। 95 में तो क्या अहमदाबाद इतना डेवलप नहीं था, धीरे करेक्ट, धीरे डेवलप हो रहा था। तो मैं वहां पे छारोड़ी 1 महीना वहां पे रहा, मंदिर में स्वामी जी की सेवा की, एसजीवीपी बन रहा था। हाँ, बाद में मेरा 12th का एग्जाम देके मैं आया था। तो स्वामी जी को बोला, मेरे को अभी एग्जाम, मेरा रिजल्ट का टाइम हो गया है, तो मेरे हाँ, को अभी जाना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने बोला कि 65% अप आएगा तो ही तेरे को गुरुकुल में एडमिशन मिलेगा। अच्छा, तो बाद में मैं यहाँ से, करीबन 400 किलोमीटर है मेरा गांव। हाँ, तो वहां से मैंने यहाँ से बस में गया। रिजल्ट मेरा आया, मेरा 68+ आया। क्या बात है, तो हाँ, वापस पूरा बैग लेके वापस अहमदाबाद गुरुकुल मैमनगर में आया। तो वेरी गुड, स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी 68+ है। तो स्वामी जी हाँ, ने बोला वेलकम। तो मैं, मेरे को जो आज मैं जो कुछ हूँ, जिस वजह से मैं हूँ, तो स्वामीनारायण गुरुकुल मैमनगर है। तो वेरी गुड, मेरे को एडमिशन मिल गया वहां पे, रहने का, खाने का पूरा डिसिप्लिन सीखे, 5 बजे उठने का पूरा कंप्लीटली। वहां से डिसिप्लिन और मैनर्स वहां से हम लोग सीखे। तो मैंने एडमिशन लिया एचके आर्ट्स कॉलेज में। अरे वाह, या और कॉलेज में एडमिशन लिया। वो टाइम पे क्या था, मंदिर में, मैं ऑफिस में, मेरे को, मैं पूरा एडमिन वो सब देखता था। तो काफी लोग आते थे वो टाइम पे। क्या बीजेपी की नई नई सरकार आई थी, तो हमारे फर्स्ट केशुभाई पटेल हाँ, बीजेपी पे चीफ मिनिस्टर बने थे। करेक्ट, तो वो भी कहीं लोग आते रहते थे, तो उसकी वीआईपी अरेंजमेंट फैसिलिटीज में बहुत मैं, हाँ, हेल्पफुल होता था ऑफिस वगैरह में। तो काफी वहां से इंटरेक्शन हुआ। तो मेरा कॉलेज टाइम था मॉर्निंग का, तो यहाँ से 51 नंबर की बस पकड़ के मेरे को कॉलेज में जाता था। और कॉलेज में भी काफी फ्रेंड्स सब मिल गए मेरे को। तो धीरे धीरे स्टेप बाय 1 साल मंदिर में रहा। तो मेरा एक फ्रेंड मेरे को मिल गया मंदिर में ही, एक भरत हाँ, करके है मेरा दोस्त, भरत कोराट, अभी भी अपने सब बस, हाँ, कंसल्टेंट ही है और एआरएम में मेंबर भी है।
Yes, तो yes, yes. हाँ, भरत और मैं मिले तो भरत ने एक दूसरा, एक धनजी भाई दुधात करके एक मेरे से सीनियर था बंदा, तो बोले हाँ, अपने को ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करते हैं। मैंने बोला ऑलवेज बी पॉजिटिव। अभी अहमदाबाद का पूरा नक्शा मालूम नहीं, अहमदाबाद सिटी के बारे में पूरा नॉलेज भी नहीं। आपको तब तक रियल एस्टेट क्या है तब तक कुछ मालूम ही नहीं था जिंदगी में? कुछ मालूम नहीं, कुछ अच्छा, मालूम ये नहीं। कोई मतलब प्लान नहीं था कि मैं एक दिन रियल एस्टेट में आऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं, मेरा तो ड्रीम था वेरी, फादर का, तो मैं एक हाँ, एडवोकेट बनूंगा एलएलबी अच्छा, करके, एक वेरी अच्छा गुड, लॉयर बनूंगा। फादर का तो ड्रीम है था। ओके। तो बोले कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, हाँ, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। मैंने बोला हाँ, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस? बोले मैं हूं ना, मेरे पास आप हैंडल करना ऑफिस वगैरह। मैंने बोला ठीक है। तो हम लोगों ने 3 गाड़ियां ली, हाँ, टाटा टाटा की। ओके, तो हाँ, और बालकृष्ण ट्रांसपोर्ट नाम की एक कंपनी चालू की, अरे ये वाह, ड्राइव इन रोड पे ही। हाँ, तो हाँ, वो टाइम पे 96 के आसपास का जो टाइम था, तो डेवलपर्स थोड़ा पीक पीरियड था और बाद में थोड़ी मंदी आई। इंडिया, तो हम बराबर, लोग ग्रिड, कपची, रेती वगैरह सप्लाई करते थे डेवलपर्स की वहाँ। ओके, हाँ, तो 6 महीना मेरा कॉलेज भी एसवाई सेकेंड ईयर मेरा चल रहा था, हम्म, और घर की भी परिस्थिति थोड़ी वीक, फार्मिंग के ऊपर पूरी आधारित हाँ, था पूरा मेरा फैमिली भी। तो फादर को पता चला कि ये तो अपना बिजनेस नहीं है, तेरे को तो मैं पढ़ने के लिए भेजा अहमदाबाद, और तू अरे, तू ये बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में कैसे आ गया भाई साहब? हाँ, तो पापा ने मेरे को, मैंने रिक्वेस्ट किया था तो 25,000 मेरे को दिया था वाह, ट्रांसपोर्ट में डालने के लिए वो टाइम पे, किसी को मेरे रिश्तेदार के वहां से लेके। हाँ, तो 3 पार्टनर थे हम लोग, तो थोड़ा ये ट्रैक मेरा साइड ट्रैक में चला गया था, मेरा फील्ड नहीं था, मेरे को आगे पढ़ना था, मेरी पढ़ाई बाकी थी। तो फादर ने मना किया, तो मैं छोड़ के पूरा कंप्लीटली बीच में से, और 10 बाय, ये गुरुकुल में निकले तो यहाँ पे रहने के लिए तो एक घर चाहिए ना भाड़े पे। तो हम लोग एक ओके, 10 बाय हाँ, 10 की रूम रख के 3 लोग रहते थे। हाँ, तो खाना जात में पकाते थे, छोटा सा प्राइमस भी रखता था, वाह, और सब सेल्फ मेड थे यस, कंप्लीटली। तो इंद्रप्रस्थ अभी भी है मेरे, ये ड्राइव इन रोड पे ही है, वहां पे E002 नंबर की मेरी रूम हाँ, थी। तो वो टाइम पे मेरा ड्रॉप हो गया था 1 साल। तो मेरा एक डेवलपर्स था, अभी नाम रिनाउंड नेम है, शालिग्राम डेवलपर्स, उनका हाँ, प्रीवियस, अभी भी घनश्याम टिम्बर करके उनकी टिम्बर शॉप थी। हाँ, हाँ, तो वहां पे मैंने 800 रुपया में नौकरी चालू की, अरे वाह, जॉब चालू की। वहां पे वो लोग बर्माटी, गाना, ये सब लकड़ी का काम भी था, अकाउंट भी देखता था। 3-4 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस थे उन लोगों का, स्टील का भी बिजनेस था, कप, ये लोखंड का भी, सब फैब्रिकेशन का भी था। एयरटेल इंजीनियरिंग करके कंपनी थी। तो 800 रुपीज में मैं मॉर्निंग में जाता था, यहाँ से ड्राइविंग से हमारा थलते थलते से रामदेव मसाला एसजी रोड पे। हम्म, तो ये पूरा मेरा सिस्टम में, सुबह में अपने पास स्कूटर भी नहीं वो टाइम पे, तो लीफ मांग के जाने का, थलते रुकने का, दूसरा एक गाड़ी पकड़ने का। तो ये पूरा सिलसिला 1 साल मैंने जॉब किया वहां पे एक कंपनी में। हाँ, हाँ, बाद में मेरे को बोला कि तेरे को 2000 सैलरी कर दूं प्रवीण भाई, आप रुको। मैंने बोला मेरा लास्ट ईयर कंप्लीट मेरे को करना है, और करेक्ट, मेरा कुछ मकसद और है, आगे बढ़ना है मेरे को। एंड देन मैंने मेरा लास्ट ईयर बीए मैंने कंप्लीट किया, रेगुलर स्कूल जाने का, लाइब्रेरी पे पढ़ने का, पूरा एजुकेशन पे फोकस किया। बाद में मैं लास्ट ईयर कंप्लीट करके, एग्जाम लास्ट पेपर था मेरा, घर पे आया, फ्री था मैं। वो टाइम पे मैंने सोचा कि चलो क्या करेंगे, एसजीबी में भी जॉब का ऑफर था, तब हाँ, एसजीबी बन गई थी, स्कूल वगैरह चालू हो गया था। तो मैंने बोला स्कूल में तो जाना नहीं है, अपना ड्रीम जबरदस्त है। मैं कभी भी निराश होता था तो ये डेल कार्नेगी है, स्वेट मार्टन का बुक्स पढ़ता था, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव एनर्जी थी कुछ करने की। क्योंकि आज मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी, सबसे बड़ा मैं था, छोटी सी मेरी बहन थी, छोटा भाई था, तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी, करेक्ट, उसका एजुकेशन से लेके पूरा कंप्लीट करने की। तो एक कंसल्टेंट आया मेरे ये इंद्रप्रस्थ के नीचे, बोले हाँ, भाई साहब आपके पास फ्लैट रेंट पे मेरे को चाहिए, मिलेगा? मैंने बोला आपको चाहिए? मैंने बोला मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरी हाँ, पार्टी के लिए चाहिए मेरे को फ्लैट। वो कौन था मैंने वो? ये 96 की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं। नाम याद है उसका कंसल्टेंट का? और हाँ, आश्लेष जोशी है, आज भी मेरा गुरु है। हाँ, आश्लेष जोशी आज भी ये तो कंसल्टेंट है, हमें आश्लेष सुनने भाई। को मुझे अच्छा लगेगा, आप एक्नॉलेज करेंगे तो। या अश्लेष भाई को आज भी मैं याद करता हूँ, यामा लेके आया था, छोटी सी हाइट थी उसकी। क्या बात है, तो वेरी, बोले हाँ,
तो बोले फ्लैट मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा भाड़े पे। तो बोले आपका कांटेक्ट, वो टाइम पे पेजर चलता था, यस। तो मैंने उसको पेजर नंबर, उसने मेरे को लिख के पेजर नंबर दिया। मैंने बोला आपको रात को मैं पेजर करूंगा भाई साहब। तो मैं वो जो ऊपर वाले मेरे पड़ोसी थे तो उसको पास गया, बोला आपका फ्लैट रेंट पे देना है? तो कहा देना है। तो बोले हमारा एक फीस लगेगा, ब्रोकरेज फीस। हाँ हाँ दलाली बोलते थे वो टाइम पे, तो हाँ ब्रोकरेज तो भी बाद में आया वर्ड्स। तो तो बोले हाँ बेटा तेरे को दूंगा, मेरे को दूसरे ब्रोकर हमको देते ही हैं, आपको भी देंगे ब्रोकरेज, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई को मैंने पेजर लगाया, भाई ना का फोन आया। वहां पे क्या है, पीसीओ में वेट करना पड़ता है बाद में, वो टाइम पे एसटीडी पीसीओ था अपना। तो उसका फोन आया, वो पार्टी को लेके दूसरे दिन आ गए, तो चाबी का बंदोबस्त कर दिया था मैंने। तो वो टाइम पे निरमा नया नया शुरू हुआ था, निरमा जो है इंस्टीट्यूट। तो वो लड़के थे, उसको घर पहली नजर में पसंद आ गया घर, और टोकन दे दिया। और एग्रीमेंट को मेरे को भी पता नहीं था, तो एग्रीमेंट कैसे बनाना है, वो टाइम पे तो पुलिस वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिंपल सिंपल नोटराइज एग्रीमेंट था। करेक्ट। तो एग्रीमेंट किया, टू डिपॉजिट 1 month रेंट एडवांस एंड 1 month मेरे को ब्रोकरेज मिला। तो मैं खुश हो गया, कितना रेंट था? जबरदस्त खुश हो गया, जबरदस्त खुश हो गया। मैंने बोला 5,000 में तो 800 रुपया में नौकरी कर रहा था बॉस। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट, एक जबरदस्त है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, जितना आपका पीआर, जितनी आपकी ऑनेस्ट इंटीग्रिटी, इतना आप कमाएंगे। मैंने सोचा कि ये तो जबरदस्त बिजनेस है। तो 5,000 आया, तो मैं गांव में मेरी सिस्टर का वो स्कूल में फीस भर दिया। वापस आया मैं अहमदाबाद में, इंद्रप्रस्थ में। तो मैंने मार्केट में जाके सर्वे किया कि यहाँ नंबर 1 कौन है, कितने कंसल्टेंट हैं, आगे कैसे बढ़ना है। एक काम तो कर लिया, अपने पास साइकिल भी नहीं, स्कूटर भी नहीं, और अपना दम पे लड़ने का है अकेले को। तो बाद में साला एक ट्रांजेक्शन तो हो गया, बाद में 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ। कोई भी बंदा आता है तो उसको मैं स्कूटर के लिए पार्टनरशिप ही ऑफर देता था कि भाई साहब तू स्कूटर तेरा, और मैं तेरे को आधा आधा ब्रोकरेज कमाऊंगा तो आधा तेरे को दूंगा भाई साहब। क्या बात है। कहीं बड़े बड़े कंसल्टेंट मेरे को अंदर ऑफिस में नहीं आने देते थे, धक्का मार के निकाल देते थे, टाइम नहीं हमारे पास। मैंने बोला अपना टाइम आएगा दोस्त, हाँ अपना सही टाइम आएगा, धीरज धीरज रखो। स्लोली बट सक्सेसफुली कोई भी अपने कार्य करते हैं तो स्लोली बट सक्सेसफुली, पैशन होना चाहिए कोई भी चीज में। पैशन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में आप। तो धीरे धीरे में 1 महीना 2 महीना, कोई ल्यूना वाला छोटा ब्रोकर मिले तो उसके साथ, आज भी याद करते हैं मेरे को, जितने हमारा मुकेश पंड्या है, कितने विमल पट शाह है, अ, अभी भी जिसका नसीब दौड़ते हैं, इतना आगे दुनिया है ये, स्काई इज नो लिमिट। या तो काफी परेशानी हुई। तो एक दिन मैं जिस रूम में रहता था, एक मेरा दोस्त था, वो भी साथ में रहता था, दूसरा एक, अभी नाम नहीं बताऊंगा। और हाँ, हमारे ट्रांसपोर्ट वाली बात मैं कहना भूल गया, भरत मेरे साथ में था ट्रांसपोर्ट में। तो ट्रांसपोर्ट में काफी इन लोगों को नुकसान भी आया। भरत आता था और काफी देर रात तक, लेट तक आता था, उसकी स्टोरी अभी बाद में आएगी। बाद में ये हितेश करके जो लड़का था, उसने मेरे को घर से रात को 12 बजे निकाल दिया कि भाई तू यहाँ पे, जो हमारे लैंडलॉर्ड था उसको बोल दिया कि भाई यहाँ पे ब्रोकरेज का धंधा करते थे। वो टाइम पे तो क्या ब्रोकरेज का धंधा रहवारी भरवाड़ लोग करते थे, अनप्रोफेशनल अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। ब्रोकरेज में कोई अहमदाबाद में इतना समझ नहीं पड़ती थी, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करते थे वो टाइम पे। क्लाइंट भी अपना डायरेक्ट चला जाता था, वो टाइम अलग था सिनारियो। तो बाद में मेरे को रात को उसने बोला, कंप्लेन कर दिया लैंडलॉर्ड को। बाद में मेरे को जाना पड़ा, मैं और भरत रूम छोड़ के, कोई ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट था कोई डेवलपर्स का, हमारा अभी भी याद है, प्रवीण भाई पटेल का घर था, मानसी टावर गिर गया, उसके बाजू में मातृभूमि अपार्टमेंट था। या तो वहां पे एक मैं भरवाड़ की फैमिली रहती थी, एक रूम रात को बंद कर देते, एक रूम में मैं रहता था। ऐसा मैंने 1 साल वहां पे गुजारा है, 1 साल। हाँ, कुछ भी परिस्थिति, कोई भी कठिन परिस्थिति में लड़ने का, हारने का नहीं, आगे बढ़ना है, हौसला बुलंद रखो। वेरी ट्रू। सक्सेस तो आना ही होगा। आप सच्चे हैं तो सफलता तो आपको 100% मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी सफलता। हाँ, तो बाद में मैं 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, मैं तो भी मैंने बोला काम तो यही करना है। मेरा रिजल्ट आया, बाद में मैंने एलएसआ लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, मेरा एलएलबी शुरू कर दिया, मॉर्निंग में लेक्चर अटेंड करने लगा मैं। बाद में एक मंदिर में बैठा था, टेम्पल में, मेमनगर गुरुकुल में। तो है ना, बीच में मेरे को एक, मेरे से बड़ा 15 साल, वो टाइम पे मेरा 19 साल
की एज थी, 19-20 साल के आसपास का था मैं। तो मेरे को एक रास्ते में एक दीप करके एक बंदा मिल गया, 15 साल पुराना, दीप गागनानी करके था, अच्छा हाँ बंदा था। हाँ, दीप तो गागनानी। हाँ गागनानी, तो वो भी सेल्समैन था कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में, तो उसका अच्छा स्पीच अच्छा था, सीनियर था मेरे से। हम्म, तो उसके पास स्कूटर था छोटा सा, हाँ चेतक करके था वो टाइम पे स्कूटर। हाँ, तो चेतक पर। हाँ चेतक। तो साथ में मैंने बोला अपने शुरू करते हैं भाई साहब, पार्टनरशिप में अपने साथ में घूमते हैं। तो उसके साथ में 2-3 घंटा नया प्रोजेक्ट चलता था, वो देखने जाते थे। रेंटल का जो पेपर एड आता था, वो पेपर एड में काम करने शुरू किया, तो भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। बाद में मंदिर में बैठा, तो मंदिर में एक हमारे हरिभक्त थे नागर भाई पटेल। हाँ। तो नागर भाई ने बोला बेटा क्या टेंशन में है? मैंने बोला मेरे पास टेलीफोन नंबर नहीं है, जगह नहीं है, मैं ये ब्रोकरेज का कर रहा हूँ, छोटा मोटा काम। हम्म, तो बोले अभी मेरा ऑफिस खाली हुआ है ड्राइव इन रोड पे, उसके बंगलों में ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस 10x10 का था, और टेलीफोन नंबर 2749140 23 ईयर हो गया, आज भी वही मेरे पास टेलीफोन नंबर है। तो बोले बोले बेटा आजा। तो मैंने रेंट मेरे पास नहीं है, मैं नहीं, हाँ, डिपॉजिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, हम्म, और आपको मेरे को देना पड़ेगा 1000 रुपीज। उसने मेरे को दिया, अरे वाह, क्या बात। अंकल ने मेरे को दिया 1000 रुपीज। हाँ, और ऑफिस शुरू किया, 1-2-3 दिन हुआ। और वो जो दीप था उसको मैंने फोन किया, भाई साहब दीप मेरे साथ आजा, तेरे पास स्कूटर स्कूटर वाले। है, स्कूटर वाले भाई आ जाओ आप मेरे साथ। तो दीप गागनानी को बुलाया मैंने, वो भी शुरू हो गया। मॉर्निंग में स्कूटर था उसके पास। तो बाद मेरे में जो 1 साल मैंने जॉब किया था कंपनी, वो जो घनश्याम टिम्बर लाटी में, हाँ हाँ, तो वहां पे मेरे पास कार्ड थे 40-50 कार्ड, विजिटिंग कार्ड उन लोगों का। तो आप तो लिफ्ट लेते थे। या लिखपाल, कोई हाँ, फोर गाड़ी वाला कोई। तो करेक्ट वो कार्ड से मैंने कॉलिंग चालू किया, टेलीफोन मेरे पास आ गया, करेक्ट। फोन चालू किया। नमस्ते, तो मैं प्रवीण बात करूं, छोटा बच्चा वो आपके पास आता था, बोले हाँ हाँ, बोल बेटा बोल क्या है? तो कि मैंने बोला मैंने ये रियल एस्टेट का बिजनेस चालू किया वेरी गुड। है, ब्रोकरेज का, दलाली का। तो बोले आपकी प्रॉपर्टीज मेरे को आप लिखाओ। तो कई लोगों ने मेरे को प्रॉपर्टीज, किसी को बेचना था, किसी को भाड़े पे लगाना था, फ्लैट वगैरह। तो मेरे पास डेटा आ गए। तो बाद में एक बुक्स पड़ी थी, मैंने बोला नाम तो रखना पड़ेगा, नाम कैसे रखेंगे? तो एक टेबल पे एक बुक्स पड़ा था, तो उसमें सिटी मैप लिखा था। हाँ, तो मैंने बोला कि सिटी, उसके एस्टेट लगा दे तो अच्छा नहीं, तो सिटी एस्टेट मैनेजमेंट नाम मैंने वहां से रखा मेरी कंपनी का, वहां से नाम का जन्म हुआ है। या वहां से नाम का जन्म हुआ। क्या तो बात सिटी है। एस्टेट मैनेजमेंट नाम रखा। मेरा एक ही फंडा था, कोई भी, आज देखो कोलगेट का नाम कैसे बना, मैं पेप्सी कोला, कोई भी चीजें ब्रांड बनाना है तो पहले आप ब्रांड में पैसा डालो, मेरे बाद में घर पे ले जाओ। तो एक रेफरेंस से, ये जो कार्ड का एक रेफरेंस से, एक सोनल बेन शाह करके आया मेरे पास, घर मेरे को चाहिए, तो मेरी ऑफिस आए। तो मैंने उसको करीबन 15-20 घर दिखाए, रीसेल वाले नए। तो वो टाइम पे 2 बेडरूम का घर की कीमत थी करीबन जजीज बंगलो की लोकेशन में 4 लाख के आसपास, 4 लाख ओनली। हाँ, तो मेरे को उसने बोला प्रवीण भाई आपको मैं अपने अच्छी मेहनत की 8000 रुपीज दे दूंगा आपको। तो उसको पसंद आ गया घर। तो मेरा तो पार्टनर भी था, मैं मेहनत करूंगा, 50% उसको देना पड़ता था। तो 4000 मिला। तो बोले मैंने बोला आपका स्कूटर प्रिया मेरे को दे दो। हम्म। तो मेरे को प्रिया स्कूटर मिल गया। तो प्रिया स्कूटर आ गया तो मैं राजा हो गया, खुश हो गया। मैंने बोला आज तो प्रिया स्कूटर मेरे पास आ गया। तो प्रिया आने के बाद मैं जो रहता था वहां से थोड़ा दूसरा एक रेंटल का काम हुआ। तो एक छोटा सा अपने को प्रॉपर्टी अपने पास आ गई। तो एक जजेस बंगलो के पास दिव्य ज्योत अपार्टमेंट है, हाँ, वहां के टॉप फ्लोर की एक रूम थी, टेरेस वाली, 10-15 बाई 15 की होगी, अटैच टॉयलेट वाली। वहां पे घर लिया। भरत भी कंटिन्यू ट्रांसपोर्ट में था, उसको लॉस भी आ रहा था, उसको भी मैंने वहां साथ में ले लिया, हम दोनों साथ में रह रहे थे। एक्सलेंट। बाद में ये स्कूटर आ गया। तो बाद में धीरे 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 मैं आगे बढ़ता गया। मुकेश मेरी कंपनी में आया, मुकेश को वो भी टेम्पल में मेरे साथ पढ़ता था, भरत भी मेरे साथ गुरुकुल में पढ़ता था। तो मुकेश को लिया कंपनी में, मैंने बोला मुकेश भी तू भी आ जा। तो मुकेश मुकेश आपके अंकल का लड़का है, आंटी का लड़का मेरा मासी का है? लड़का है। आंटी का तो लड़का। मुकेश वासानी भी मेरे हाँ, साथ 98 में ज्वाइंट हो गया। वेरी मेरा गुड। करीबन हाँ 6-8 महीना वो था कंपनी शुरू हाँ, की। हाँ,
बाद में मेरा टर्निंग पॉइंट कहाँ से आता है, इतनी मेहनत हाँ। भी की, कितने इससे पहले तो मैंने काफी मेहनत की थी ऑलरेडी, 6 महीने तो टेलीफोन बूथ से भी किया काम, कितने लोग, ये जितने अहमदाबाद के हमारे ड्राइव इन रोड है ना, ये लकीएस्ट स्पेस है, जैसे मानव मंदिर से लेके वहाँ सबकी स्टोरी मेरे जैसी है। आज तो, हमारे शिल्प वाले यश भाई को भी देखो, हाँ, सम्राट वाले अशोक भाई, डेयरी थी छोटी सी, तो आज भी उसका correct, बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये रोड हार्डकोर, हमारे मेरे दोस्त अजीजी दोस्त मनोज सोनी, रॉयल स्पेस, हाँ हाँ, वो भी मेरी लाइन में वही रोड पे है। very good. तो ये रोड पे हमारा अमित भाई शाह का भी ऑफिस इधर ये रोड पे था। That's the road रे भाई, that's the road रे. Because तो the road. ड्राइव इन, हाँ, हाँ ड्राइव इन रोड, आई थिंक मेरे ख्याल से सुरेश भाई का भी यही रोड पे डेवलपमेंट, उसने भी सूर्यदीप बनाया है। correct. तो काफी ये पॉकेट लाइमलाइट और गुरुकुल रोड पे के जो कंसल्टेंट है ना, वो सुपर फास्ट भागते हैं, और लक्की लैंड है ये जो पैच है वो। Yes. तो बाद में मेरा फादर को पता भी नहीं था कि मैं ब्रोकरेज का बिजनेस कर रहा हूँ, उसको तो 6-12 महीने के बाद पता चला। मैं तो, मेरा स्टडी पैरेलल शुरू था। Okay. तो मेरा फादर कोई मंदिर में दर्शन करने गए, तो वहां से कोई भाई साहब मिल गए, हमारे पाटीदार पटेल थे, तो बोला कौन से गांव के, क्योंकि मैं अहमदाबाद रहता हूँ। फादर ने बोला मेरा बेटा भी हाँ, अहमदाबाद में ही पढ़ता है, तो हाँ, उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं हम लोग। मेरे को तो पता ही नहीं। हाँ, तो मेरा फादर ने लेटर लिखा मेरे को कि ये भाई साहब, मेरा ससुर मेरे को आएगा देखने के लिए। हाँ, तो मैं हाँ, था नहीं, मुकेश था, तो मिला उसको मैं। बाद में दूसरे दिन वापस आया तो मैं मिला उसको, तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा हौसला उसको पसंद आ गया कि आदमी दमदार है, ये हाँ, मेहनतू आदमी है, जगह करेगा, कुछ भी नहीं है तो भी। तो वो मणिनगर में रहते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे। correct. हाँ, बाद में मेरा एंगेजमेंट हुआ क्या? This was 2000 में। 99, 2000. हाँ 99 एंड बाद में धीरे धीरे मेरा प्रोग्रेस होने लगा। मैं रेंटल का काम शुरू किया। रेंटल में हमारे नियर बाई जो टावर है, सर्जन, साम्राज्य, इंद्रप्रस्थ वगैरह, हाँ, सखत हार्डवर्क। सुबह में 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम किया। जितनी चाबी थी सबके पास, कंसल्टेंट के पास, मैं इतना मेहनत करता था। ओनर के साथ इतनी रिलेशनशिप बनाया, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और महीने का करीबन 5-10 फ्लैट भाड़े पे चालू yeah, हो गया। वो very टाइम पे तो क्या अपने पास डायरेक्ट इन्वेंटरी नहीं है, तो right. दूसरे कंसल्टेंट के थ्रू काम करते थे, 2 लोग 3 लोग जितना है, क्योंकि वो टाइम पे रेंट भी कम था। 2 बेडरूम का रेंट तकरीबन होगा 3000-4000 के आसपास का Yeah, रेंट, 2 बेडरूम 3 बेडरूम का 10,000 के आसपास वो टाइम पे। yeah, तो धीरे 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 प्रोग्रेस करने लगा। 2000 में मेरा एंगेजमेंट हुआ। पार्टनरशिप जो मेरा वो बंदा था वो सेपरेट हो गया। हाँ, वो भी एक स्टोरी थी। मैं मेरा गांव में गया था, तो वो जो मेरे अजीजी दोस्त थे, मिस्टर दीप, वो हाँ. सब हमारा डेटा सब लेके चला गया था। मैंने बोला जाना दो, अपने नया डेटा बना लेंगे। अच्छा, तभी तो रजिस्टर हो गया, रजिस्टर लेके निकल. या सब सब सब। तो बाद में अहमदाबाद में मेरा एक रिलेशन, मेरा ससुर, एक नया रिलेशनशिप हुआ, मेरा नया रिश्तेदार बना। बाद में 2001 में मेरी शादी हुई, मतलब 2001 में। मतलब जो भी मोमेंटम आपकी लाइफ में है वो शादी के बाद में ही आया है. शादी के बाद में 2001 में आया शादी है. हुई। बाद में हाईएस्ट बिजनेस हमने भूकंप के टाइम किए। हाँ, अर्थक्वेक में जो जितने बंगले खाली थे, रोसिस खाली थे, वो right. टाइम पे अच्छा रेंट पे लगाया, अच्छा पैसा। धीरे 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 मैं टीम में, वो भरत को नुकसान हुआ था काफी का ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, भरत ने भी ज्वाइन किया। काफी लोग थे, उसको मेरे को इतना लेना है, इतना। मैंने बोला सबको मिल जाएगा, बराबर. उसको टाइम दो। तो भरत भाई को भी सेट किए, मुकेश भाई आ गए। धीरे धीरे मैं 2001, 2, 3, 4 स्लोली बट सक्सेसफुली 2001 में 2 बेडरूम का घर मेरे को अच्छे, मेरे आज भी याद कर रहा हूँ। मेरे शैलेश भाई मिस्त्री को मैं कभी नहीं, जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। उसने मेरे को हाँ, उसकी कंपनी में मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न भर के उसकी कंपनी में लोन दिला के मेरे को 3.5 लाख का 2 बेडरूम का घर मैंने लिया। क्या यस। बात है. और इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे मेरा चलता रहा। तो मेरा 2 बेडरूम वेरी का गुड. घर हो गया। बाद में मैं गांव में से, मेरा दोनों सिस्टर, मेरा ब्रदर को सब अहमदाबाद लेके राइट. आया। सबका एजुकेशन यहाँ पे, फीस वगैरह में पूरा कंप्लीट सेटअप किया। प्रकाश वो टाइम पे स्कूल पे था, तो स्कूल का फीस वगैरह
दोनों सिस्टर की शादी भी अहमदाबाद में मैंने लड़का भी देखा। 2004 में मेरा बेटा मीत का बॉर्न हुआ। वो टाइम पे सब साथ में था, तो दोनों सिस्टर की शादी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो फुलफिल की कंप्लीटली। धीरे धीरे एक लोग 15 10 लोग 15 लोग 20 लोग 2007 तक मैंने मेरा नीचे का ग्राउंड 10 बाई 10 से बड़ा किया, ऊपर का 1500 स्क्वायर फीट। अंकल को बोला, अंकल भाड़े पे भी हाँ, अच्छा बना दो। thank you. तो नागर काका को बोला आप रेंट बढ़ा दो, ऊपर 1500 स्क्वायर फीट। आप मेरे पुरानी ऑफिस आए थे वो टाइम पे। यस 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 यस। तो ऑफिस बनाई। मैं कमर्शियल भी काफी काम किया रियल एस्टेट में। सुबह से एयरपोर्ट कोई भी मुथूट फाइनेंस से लेकर एयरपोर्ट से पिक करता था, तो जब तक छोड़ता नहीं, ट्रांजेक्शन क्लिक नहीं करता तब तक छोड़ता नहीं था। तो हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने फील्ड में। अभी लोगों का यंग जनरेशन जो है उसको अभी तत्काल मर्सिडीज BMW ऐसे नहीं आएगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के साथ साथ ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की भी जरूरत है। खुदा खुदा देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, खुदा को भी सुनना पड़ेगा बॉस। बराबर तो है। अपनी नीयत साफ होनी चाहिए। कोई भी आप कोई भी फील्ड पकड़ लीजिए, चाहे ब्रोकरेज हो है, चाहे डेवलपर, चाहे XYZ, तो मेहनत करनी पड़ती है। तो इतनी हार्ड वर्क की मैंने 8 साल तक किसी की शादी में भी नहीं गया हूँ मैं, पता है ओह, आपको? किसी की नहीं, क्या कोई बात। रिलेशन मेरा रिलेटिव की शादी में भी नहीं। ओनली बिजनेस बिजनेस बिजनेस, एक ही मंत्र था अपना। फोकस सामने वही था, वो अर्जुन या अपना तीर वर्क। कमान या का मतलब। हाँ, बाद में मैं कमर्शियल में एंटर हुआ। बाद में मेरे हमारे खास अजीजी दोस्त, मेरे डैडी जिसको मैं बोलता हूँ, सचिन श्रॉफ। हाँ। सचिन श्रॉफ 2004 को सचिन श्रॉफ मिला हम्म। एक जस्ट डायल के। मैं कोई भी मीडिया छोड़ता नहीं था। मैंने बोला ना, मैं एडवर्टाइजमेंट इतनी देता था आपका गुजरात ब्रांडिंग, समाज प्रवीण भाई, ब्रांड। मुझे याद है कि मैं खुद या जब अहमदाबाद में 2007-8 में ऑफिस के लिए ढूंढ रहा था, तो मैं जो रोड पे जाता था उधर छोटे छोटे बोर्ड दिखते थे सिटी एस्टेट मैनेजमेंट के, नो पार्किंग के, बहुत सारे बोर्ड देखे मैंने। तो मैंने यस। तो ऑफिस स्टार्ट किया तो मैं लोगों को बोलता था, मैं बोला ये इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। तो मुझे पहले याद से है। हाँ, गुजरात समाचार एज वेल एज वो टाइम पे एलो पेजेस थी, आपको यस, पता है? तो बराबर है। एलो पेजेस में अपना फुल पेज ऐड रहता था। और एलो पेजेस से लेके पूरा कोई भी मीडिया है, जस्ट डायल है, इन्फोलाइन है, सभी सभी ऑनलाइन ऑफलाइन सभी अपना ऐड रहता था। बाद में 2004 5 6 में सचिन के साथ अच्छा काम, कमर्शियल, डॉक्टर बत्रा, कमर्शियल में भी किया, लीजिंग में किया, रेजिडेंशियल में भी इतना काम। तो मैंने सभी वर्टिकल में काम किया है। और दूसरा पहलू मेरा ऐसा है, वेरी मैं गुड। किसी किसी ब्रोकर के वहां जॉब नहीं की है, यू नो। मैंने कोई कंसल्टेंट के वहां जॉब नहीं की। मैं बराबर। अकेलौता ऐसा हूं मेरे पास विदाउट एक्सपीरियंस। ये कि मैंने मेरी स्टोरी आपको बता दी, एक बंदा आता है, मेरे को मिलता है, करेक्ट। और वहां से मेरी स्टोरी शुरू होती है। और आपने जो भी सीखा है वो खुद खुद काम करके सीखा है। काम करके बात। सीखा है। खुद खुद से बलबूते से मैं आगे बढ़ा हूँ। सेल्फ मेड, 100% यस। सेल्फ मेड। और आज भी कहता हूँ, प्योर ब्रोकरेज आपको करनी है तो कोई गाला सिस्टम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी होगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। एकदम वरना आपकी क्रेडिट और क्रेडिबिलिटी जो है फेटर्निटी में, रियल एस्टेट सही। फेटर्निटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर अपना। सही सही एंड बात। देन 2007 में हमने सचिन, मेरे को मिला। 2008 में हमने NAR इंडिया का जो वो ओह, बात लेके मेरे पास प्रपोजल लेके आया कि प्रवीण भाई ये नरेश मलकानी मेरे को मिला। नरेश भाई की इंडिया प्रॉपर्टी पोर्टल पहले था। इंडिया प्रॉपर्टी। अपने को, हाँ, इंडिया प्रॉपर्टीज वो टाइम पे। तो यस। अपने अपने को ये एसोसिएशन बनाना है। अहमदाबाद में कुछ इतना एक्टिव एसोसिएशन हमारा था पहले पूरा ना, उसमें भी मेंबर था, पर इतना ही ये एक्टिव नहीं था वो एसोसिएशन। तो सचिन अच्छी प्रपोजल लेके आया, तो बोले अपने को वो टाइम पे तो क्या बैंगलोर जाना है, तो फ्लाइट का टिकट का भी पैसा भी सोचना पड़ता था भाई साहब। तो बोला अपने को बैंगलोर जाना है, ये करना है। तो सचिन के साथ अपने सचिन ने पहले VRA चालू किया। बाद में मेरा भी रजिस्ट्रेशन मैंने किया 2009 में। 2008 में हम प्रोसेस में थे, 2008 में हमने कंप्लीट किया अहमदाबाद रियल्टर एसोसिएशन। हाँ, सचिन की अच्छी गाइडलाइन मिलती थी। कुछ भी कंफ्यूजन है तो मैं सचिन को मिलता था ऑलवेज। बाद में हमने अपने साथ में ये बैंगलोर में अपने सेंचुरी पेविलियन में हम लोग 6-7 लोग थे फाउंडर, हाँ, जिसमें मैं भी था, हाँ, फारूक भाई थे, कल्पेश, नरेश मलकानी, किशन मिलानी,
और इरशाद अहमद, मिलन, ये हाँ मित्तल, तो बॉम्बे से कल्पेश भाई थे। तो वो टाइम में हमने लोगो डिजाइन किया, NAR इंडिया बनाया, फर्स्ट कन्वेंशन हमने पुणे में किया। Yes. या और मेरे को अभी भी याद है, ओनली थैंक यू करके मैं खड़ा हो गया था, क्योंकि मैं इतना, मेरे को बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी इतना तो काफी क्रेडिट मैं सचिन भाई को दूंगा, उसने मेरे को काफी मोटिवेट किया। बाद में हमने अहमदाबाद में काफी रोड शो किए, एक मार्कस वैली को भी बुलाया था, Yes. वाइब्रेंट गुजरात करके ग्रांड भगवती में शो किया था, 300 पीपल ने पार्टिसिपेट किया था। और काफी जक्षय भाई ने भी, क्रेडाई ने भी सपोर्ट किया, वो टाइम में सुरेश भाई भी थे, तो सुरेश भाई ने भी काफी सपोर्ट किया। तो आज धीरे धीरे वो टाइम पे मैं काफी अहमदाबाद के लीडिंग नंबर 1 कंसल्टेंट थे, उसके पास भी गया था प्रपोजल लेके, भाई साहब आप Correct. साथ में, ये आप ही प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनी है। तो उसने वो टाइम पे उसको बोला होगा कि ये तो कुछ जरूरत नहीं है। तो ये अपना जज्बा था कि कुछ Correct. करना है, एसोसिएशन को भी मजबूत करना है, कंपनी को भी मजबूत करना है, आगे बढ़ना है और हौसला रखना है। तो आज देखो 2009 से लेके अभी अहमदाबाद रियल टुडे नाउ अहमदाबाद रियल्टर एसोसिएशन 100 प्लस है, Correct. जबरदस्त। और काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वाइस प्रेसिडेंट 2012 में था, 2012 13 मैंने 42 गवर्नमेंट जीबी अटेंड की NAR Yes. इंडिया में। और NAR इंडिया से काफी हमारे अच्छे दोस्त बने, लाइक यू ऑल्सो, कल्पेश भाई मुंबई में। और काफी हमारे NAR इंडिया के जितने 200-300 अच्छे मेंबर्स जो है कनेक्ट हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है और काफी कुछ सीखे। आज आपके पास पे भी हम सीख रहे हैं काफी, इतनी लीडरशिप है, इतना आप जो ब्रोकर की पाठशाला, आप जबरदस्त, आपका एक आपने प्रॉमिस दिया कि जब तक मैं रहूंगा तब तक ये ब्रोकर की पाठशाला में चलाते रहूंगा, ये आपका जज्बा है। तो अब धीरे 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 हमने मेरा जो जर्नी है, बाद में 2011 में भोपाल ऑफिस हमने बनाया। 2011 में नया ऑफिस में शिफ्ट हुआ, 4000 स्क्वायर फीट का, प्रोफेशनलिज्म लाया, पूरा कंप्लीटली सेटअप किया, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सब वर्टिकल, लाइक इंडस्ट्रियल वर्टिकल, रेजिडेंशियल सेल्स, रेजिडेंशियल रेंटल, कमर्शियल एंड डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट। एक पूरी कंपनी फॉर्मेशन किया, प्रोफेशनलिज्म से काम शुरू किया। बाद में 2014 में सिरिल कंपनी बनाई, अक्टूबर 2014 में। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, काफी ब्रोकर्स सुनते होंगे अभी कि आपकी एक चीज जो मैंने, बिकॉज मैं भी आपको तकरीबन 2008 से पहचानता हूँ, 12 साल हो गया, एंड आई हैव सीन कि आप लास्ट 12 साल में कितना, 2-3 चीज जो मुझे आपके अंदर दिखी। एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जोरदार है। जी जी। आपको खुद को है ना, कोई चीज कन्विक्शन आती है ना कि ये चीज अच्छी है, तो आप बाकी किसी से डरते नहीं, आप खुद चले जाते हो रास्ते के ऊपर। दूसरी चीज मैंने देखी कि ये जो NAR इंडिया का प्लेटफॉर्म है, नेटवर्किंग, ये बहुत सारे मेंबर है NAR इंडिया में, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो NAR इंडिया को यूटिलाइज करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, उसमें कितना अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक आपको पता है कि NAR इंडिया की वजह से आप इतने सारे लोगों को मिले, आपने दूसरे लोगों के बारे में देखा, दूसरे सिटी में गए, तो आपका विजन जो है वो और बड़ा हो गया NAR इंडिया की वजह से, और आपने बिजनेस भी काफी ब्रोकर के साथ किया है। 100%। आज मैं बैंगलोर जाता हूँ, मैं कलकत्ता NK रियल्टर्स पवन भाई को मिलता हूँ, मैं जीतू खेतान को मिला था फर्स्ट टाइम, वो टाइम पे उसके पास मर्सिडीज गाड़ी थी, उसका गोल था। मैं रवि वर्मा जी को मिला, तो रवि वर्मा जी जबरदस्त, उनके टाइम पे जबरदस्त काम करते थे। तो काफी प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन प्रेरणा मिलती है। तो मैं क्यों ना करूं, मैं भी एक टारगेट बना लेता था। तो ये चीज मेरे को 2015 में मेरे पास आनी चाहिए। मेरे पास भी BMW, मर्सिडीज, मेरे पास भी ये, मैं चीज बना लेता था। मेरे पास ये रोलेक्स मेरे को लेना है, तो मैं रोलेक्स लेके ही रहूंगा। मेरे को ये मैं पूरा ड्रीम में, आज मैं 2007 में लैंड के बिजनेस में आया था। तो 2007 में कोई भी लैंड देखता था ना, तो मैं ड्रीम बना लेता था कि ये लैंड मैं ही बेचूंगा, मेरा ही सिर्फ अधिकार है ये लैंड पर। क्या बात है। यस, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं लोगों का टारगेट हो, शायद 2 लाख 5 लाख कमा लिया, इनफ। मेरा टारगेट मोर है। ये पेन है, ये पेन मेरे को चाहिए, तो मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, ये पेन की वैल्यू समझना पड़ेगा। तो ये आगे बढ़ने के लिए आदमी का जज्बा और आदमी की हिम्मत जरूरी है इस फील्ड में।
एंड देन अपना 2000 अपनी 2012 में अपना भोपाल ऑफिस, देन गोता, चांदखेड़ा, मणिनगर, इंडस्ट्रियल वर्टिकल, तो अभी आपके जामगोदर, कितने ऑफिसेज है प्रवीण भाई करीबन टोटल? मेरा वी हैव 7 ऑफिस एंड 85 मेरा एम्प्लॉय है। तो ये जर्नी है, ये काफी मेहनत करके, काफी हार्डवर्क करके मैं आगे बढ़ा हूँ, और आपके जो सीनियर मेंबर्स की प्रेरणा की वजह से आगे बढ़ा हूँ। तो ये जी अभी आपने अहमदाबाद तो पूरा कवर कर लिया, अहमदाबाद के आसपास के जितने भी सिटी है, बट आपने जी इंडिया के थ्रू जो आपको बहुत सारे दोस्त मिले हैं, उसके साथ में एक नेशनल नेटवर्क बना है सिरिल, उसके बारे जी में कुछ कहना चाहेंगे? वो कैसे बना, उसका बेनिफिट क्या है? राइट क्वेश्चंस विनोद भाई। ये जो सीरियल को मेरे को थोड़ा प्रोसेस में आया, जो मैं हमारा कन्वेंशन था एनएआर इंडिया का, तो हम लोग Correct. मिलते थे, तो लाइक माइंडेड पीपल है, जो जैसे जैसे अहमदाबाद में नंबर 1 नंबर 2 कौन है, ऐसे जैसे कलकत्ता में एनके रियल्टर्स नंबर 1, पायोनियर, 2 लीडिंग कंसल्टेंट है, पूना में हमारे राजू मेहतानी, ऐसे हमने चूज करके, जैसे मुंबई में हमारे संजय पुरी है। Right. तो जो लाइक माइंडेड पीपल है, अच्छे लोग है, अच्छा एक्सपीरियंस है उनकी टेरिटरी में, Very जैसे true. जैसे पुणे में है तो हमारे राजू मेहतानी है, 35 साल का एक्सपीरियंस है उसका। तो हमने मिलके एक एसोसिएशन रिफॉर्म, पार्टनरशिप फर्म बनाया, सीरियल Yes. नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ वो Right. उसके जरिए हम लोग ओनली फॉर बिजनेस बिजनेस Correct. पर्पस के लिए ही बनाया है। तो ये हमने काफी कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं, Very good. इनबाउंड बिजनेस, आउटबाउंड बिजनेस। आज फॉर एग्जांपल मेरा कोई अहमदाबाद का डेवलपर्स है, तो अहमदाबाद का डेवलपर्स में मुंबई में प्रोजेक्ट करना है, तो मेरा मुंबई में अपना ऑफिस है, ऐसे करके हम काम करते हैं, उसको Correct. प्रपोजल मिल जाती है प्रॉपरली, वहाँ का Perfect. जीडीसीआर लोकेशन, तो वहाँ पे हम उसको लेके जाते हैं, तो अच्छी सर्विस मिलती है वो। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग उसको जानते हैं, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कंपनी प्रोफाइल क्या है उनका। तो ये काफी, आज पुणे है तो पुणे लिए मेरे नया सिटी है, हैदराबाद जो है तो हैदराबाद का, वहाँ का नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, वहाँ की अथॉरिटी मेरे को मालूम नहीं है। तो ये काफी यूजफुल अपने को रहते हैं। वेरी गुड। अभी व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम योर जर्नी कि आप हर चीज है ना समय के आगे चलते हो, कुछ भी चीज नई, जैसे आपने बोला कि पेजर आया, फिर येलो पेजेस आया, इन्फो लाइन आया, डायल। तो अभी आजकल जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से फास्ट भाग रही है, जी तो हाउ मच टेक्नोलॉजी यू अडॉप्टेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन? आप लोग क्या करते हैं टेक्नोलॉजी पे? आपका इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बिजनेसेस है, तो उसको कैसे टेक करते हैं? अभी रजिस्टर का जमाना तो रहा नहीं। जी, उसमें हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है, 1 पॉइंट वेरी कांटेक्ट गुड। हमारा एचआर एडमिन है, पूरा कॉल सेंटर बनाया हुआ है। एक लीड जनरेट, जैसे महीने की 500,000 लीड आती है, उसके उसमें हाँ। सिंक्रोनाइज होती है डिपार्टमेंट वाइज, जैसे रेजिडेंशियल रेंटल, रेजिडेंशियल सेल, कमर्शियल, रिटेल, होटल, हॉस्पिटल, लॉजिस्टिक, इस टाइप की मैंने टीम बनाई हुई है। तो ये पहले जाता है कॉल सेंटर में, हाँ, कॉल सेंटर में पूरा सिंक्रोनाइज होके डिस्ट्रीब्यूट होता है मैनेजर को, और मैनेजर एम्प्लॉय को लीड जनरेट करता है, और पूरी सिस्टम, पूरी सॉफ्टवेयर में पूरा सॉफ्टवेयर मैनेज किया हुआ है विनोद भाई। और अभी हम लोग, जैसे आप और मैं, स्पेशली लास्ट 20 साल के अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, पहले जैसे आपने कहा कि शुरू में दलाल करके बोलते थे लोग, रिस्पेक्ट नहीं था। अभी इंडस्ट्री के अंदर काफी रिस्पेक्ट आया है, ऑर्गेनाइज हो गया है, रेरा आ गया है समझो। तो जी नया जनरेशन जो है उनको भी अभी रियल एस्टेट अट्रैक्टिव लगने लगा है, बिकॉज अभी आपको कोई मिलेगा समझो, कोई यंग जनरेशन, और आपका जी स्टाइल देखेगा, आपका अचीवमेंट देखेगा, तो उसको भी लगेगा कि यार मेरे को भी प्रवीण भाई बनना है। तो उनको क्या आप गाइडेंस देंगे, जो एवरेज ग्रेजुएट लोग हैं, जो हमेशा पहले बोलते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है? आपको लगता है आने वाले टाइम में यंग जनरेशन आके बोलेगा कि मेरे को रियल एस्टेट एजेंट में बनना है, चूज करेगा समझो अपना इंडस्ट्री? जी जी, राइट क्वेश्चन। ये जो रियल एस्टेट फैटर्निटी है ना, ये मैं तो मेरी मेरी जात को नसीबदार मानता हूँ कि आज मेरे को, मैं कभी बिल्डर नहीं बनूंगा। मेरे को ये ब्रोकर बना, भगवान को मैं थैंक यू बोलता हूँ। मेरे को जिसने ये प्रेरणा दी, आश्लेष जोशी भाई को भी मैं सलाम करता हूँ कि ये बिजनेस मेरे को आप लाए। तो मेरी तरफ से जो अभी के यंगस्टर्स जो है, अभी करेक्ट। तो यंगस्टर के पास तो टेक्नोलॉजी है,
आप 99 एकड़ पकड़ लीजिए, मैजिक बिल पकड़ लीजिए, तो वो टाइम पे वो थे नहीं टूल्स अपने पास, अपने बुक्स मेंटेन करते थे, रेफरल से काम करते थे। तो अभी ये टेक्नोलॉजी आ गई, वो टाइम पे मोबाइल भी नहीं थे, पेजर से चलाना पड़ता था, पीसीओ में जाना पड़ता था, तो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। आप खुद का ऐप्स भी बनाने लगे हैं अभी, पूरा वेबसाइट भी स्ट्रांग है अभी। वो टाइम पे वेबसाइट डोमेन का कुछ ठिकाना नहीं था, इतना इंटरनेट का जमाना ही नहीं था वो टाइम पे। अभी तो आपको 4G 5G आने लगा है, तो यंगस्टर के लिए साराમાં વેરી ગુડ ઓપોર્ચ્યુનિટી है। જેમ કે બહારની આઈપીસીસ ની વાત કરીએ તો જેલેલ, નાઇક ફ્રેન્ક, સીબીઆરઈ, કોલિયર્સ, રીમેક્સ, એ ટાઈપની બધી કોડવેલ બેન્કર્સ, એવા બધા હાઈલી ક્વોલિફાઈડ પીપલ છે, ડોક્ટર છે આ લાઈનમાં, એન્જિનિયર છે, અને એવા બધા ઘણા બધા લોકો આ લાઈન ચૂઝ કરવા મળ્યા છે। રીઝન, આ લાઈન એવી વસ્તુ છે કે આ લાઈનમાં તમે आप जितने दौड़ेंगे, जितने भागेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, पर प्रॉपरली प्री प्लानिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अभी जो अपनी यंग जनरेशन टीम जो है काम कर रही है, तो व्हाट्सएप के जरिए पूरा प्रेजेंटेशन, पीपीटी सब रेडी रहता है। गूगल मैप अपने लिए जबरदस्त टूल्स है, तो वो टाइम पे गूगल मैप भी नहीं था। कहीं भी आप पकड़ लो कि क्या भेजो कि गूगल करो मेरे को फटाफट, लोकेशन किधर है, तो ये इजी एक्सेस है, अपने पास टूल्स भी अच्छे हैं। करेक्ट। लेकिन ठीक है, टेक्नोलॉजी आई है, वो हमको एक एडिशनल कम्युनिकेशन अपना फास्ट हो गया है, बट आपको लगता है कि एंड ऑफ द डे जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, कभी कभी हम नए कस्टमर ढूंढने के लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर को भूल जाते हैं कि एक ट्रांजेक्शन हो गया समझो। आजकल बहुत सारे जो प्राइमरी मार्केट के अंदर लीड जनरेशन करके कस्टमर को ब्रोकर मिलता नहीं है, खाली ऑनलाइन लीड पास कर देता है डेवलपर को, क्लाइंट डायरेक्ट जाता है, ट्रांजेक्शन हो जाता है, ब्रोकरेज मिलता है, लेकिन वो कस्टमर के साथ में 1-to-1 कनेक्शन या वो हैंड होल्डिंग है लास्ट में। तो आप आपकी कंपनी में कस्टमर को रिटेन करने के लिए क्या करते हैं नहीं जो नहीं, कस्टमर आपके पास वापस आए? उसमें कैसा है कि अपने 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 जैसे मेरा 25-23 साल 24 साल से इंडस्ट्रीज में हो गया है, अपना इतने प्रीवियस अपने क्लाइंट है, उसमें आपको पूरी पूरी लिस्ट बनानी पड़ती है कि भी मेरा 20 कस्टमर है, ये प्रायोरिटी इन्वेस्टर है, ये एंड यूजर है, तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एंड तक, एंड टू एंड तक अपने को सॉल्यूशन देना पड़ता है, तो ही कस्टमर हैप्पी रहेगा, आपके पास दोबारा वापस आएगा, दूसरा रेफरल 5-6 लोगों का देगा, उसमें अपना धंधा बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से अपने लास्ट टू लास्ट तक, एंड टू एंड तक उसको सर्विस देनी चाहिए। एक्सीलेंट। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल जर्नी प्रवीण भाई। अभी थोड़ा अपन पर्सनल लेवल पे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो 1-to-1 क्वेश्चन बोलते हैं ना, जी कि प्रवीण के लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सॉरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर यू? प्रवीण भाई के लिए सक्सेस का मतलब क्या है? अच्छा, सक्सेस का मतलब ऐसा है कि मैं पहले भी हैप्पी था, मेरे पास स्कूटर था, वो टाइम पे भी हैप्पी हाँ, हूँ। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी हैप्पी, मैं किसी को यूजफुल हूँ। आज मेरी वजह से आज 200 बच्चे हैं, वो कंसल्टेंट है, ये मेरे को वेरी गुड। खुशी मिलती है, उसकी हाँ, एक्सीलेंट। सफलता देख के मेरे को खुशी मिलती है। कितने वेरी गुड। बच्चे में सुपर फास्ट भागते हैं, सिटी एस्टेट में जाना क्यों हाँ, पसंद करते हैं? क्योंकि करेक्ट। एनर्जेटिक आदमी बनता है, वेरी पंक्चुअल गुड। होता है, टारगेट ओरिएंटेड काम करता है, काम क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा। तो एक्सीलेंट। मेरे जो इतने बच्चे हैं आज, उसका उसकी ऊर्जा से मेरे को आनंद मिलता है और मैं और हैप्पी हूँ। ये मेरी खुशी का राज है। एक्सीलेंट। व्हाट डज मनी मीन टू यू? पैसे, ये पैसा आपके लिए क्या है? कुछ भी नहीं, मनी इज नॉट मैन थिंग। मेरे लिए मैं पैसा कमाता हूँ, मैं मेरे खुद के ऊपर यूज कर, और समाज के लिए भी मैं अभी काफी संस्था में ट्रस्टी हूँ, अन्नपूर्णा धाम में मैं ट्रस्टी हूँ, वहां पे भी डोनेट करता हूँ। कहीं ऐसी संस्था है, कितने मेरे कौटुंबिक बच्चे हैं, तो उसको मैंने पढ़ाया हुआ है 10 साल 15 साल। कहीं वेरी गुड। रिक्शा वाले भी है, रिक्शा वालों का बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, एजुकेशन का फीस देता हूँ। एक्सीलेंट। वो वेरी भी गुड। चैरिटी के लिए भी काम करना जरूरी है, क्योंकि हमको जो मिला है वो समाज से मिला है। अगर हम या समाज समाज से से देंगे मिला है, तो फिर समाज को देना पड़ता है। वैसे भी हमारी शिक्षा पत्री में लिखा हुआ है स्वामीनारायण संप्रदाय में कि हाँ, आप 100 रुपया कमाते हैं ना, तो 5 रुपये का दान करना चाहिए। एक्सीलेंट। बॉलीवुड, बॉलीवुड में आपकी कौन सी फिल्म आपकी सबसे फेवरेट है लाइफ में? बॉलीवुड की मूवी में तो जनरली लगान मेरे को अच्छी लगती लगान। वेरी गुड। है। लगान। एक्सीलेंट। एंड हु इज योर फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर मैंने अमिताभ बच्चन। भाई साहब। और आपका बुक, सबसे फेवरेट बुक कौन सा है जो पढ़ा मेरा है आपने?
स्वेट मार्डन, डेल कार्नेगी, दोनों में पढ़ता हूँ, रॉबिन शर्मा ऑल्सो। हाँ। और यू आर अ ग्रेट लीडर। कभी कभी हम लोग खुद अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, तभी हमको ये पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन आप अपने पीछे देखेंगे और एक मकाम पे जिस तरीके से पहुंचे, तो वो जो लीडरशिप आपके अंदर है, आपने तो कोई जाके लीडरशिप मैनेजमेंट तो कहाँ पे किया नहीं है, किया नहीं, अपने कोई अंदर कोर्स से नहीं बाहर किया। निकली, right? तो जी जी। आपके हिसाब से यंग जनरेशन को, बिकॉज यू आर अ सक्सेसफुल लीडर, तो ऐसी कौन सी चीज है जो लीडर को सक्सेसफुल होने के लिए उसके अंदर होनी चाहिए? एज अ लीडर, हु इज अ गुड लीडर अकॉर्डिंग टू यू? गुड लीडर, आप हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो अंदर से ऊर्जा आपको मिलेगी, और अपने से खुद से पावर जनरेट करना पड़ता है, वही लीडर बनता है। थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्या बात भागते रहना चाहिए, वही है। जीवन का गोल है। Excellent, Praveen bhai. It was absolutely my pleasure to interact with you, and I'm sure मैं तो इतने साल से आपको जानता हूँ, वही एनर्जी आपको मिलता हूँ कभी भी, मतलब यू आर ऑलवेज हैप्पी गो लकी गाय। मैंने कभी आपके मुंह से कोई चीज नहीं हो सकती ऐसा सुना नहीं है। हम इतने साल एनआर इंडिया में भी साथ में रहे, तो आप बोलते हैं ना, आप जहां जाते हैं वहां आसपास के लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा लेके जाते हैं, खींच के आते हैं। यू आर समबडी जिसको हर इंसान को लगता है कि यार मैं भी प्रवीण भाई जैसा बनूं, मुझे प्रवीण भाई का दोस्त बनना है। And I think that is a very rare quality. Thank you very much for being here. और आपके लिए मैं खाली एक ही चीज बोलता हूँ कि आज का जो एपिसोड है, अगर कोई गुजराती फिल्म प्रोड्यूसर ने सुन लिया, तो मुझे यकीन है कि एक बार गुजराती फिल्म आपकी 100% आपकी स्टोरी के ऊपर बन सकती है और बनेगी। मैं ऐसी आशा रखता हूँ। और यस प्लीज। नहीं, बनेगी। हमारे सौम्य जोशी ने 3 घंटा मेरा लॉकडाउन में स्टोरी लिखी है। बराबर है। मेरा सौम्य भाई वहां पे बॉम्बे भी चले गए रहने के। प्रसन्न जोशी का ब्रदर है सौम्य जोशी। I know प्रसन्न या जोशी। सौम्य भाई मेरे प्रोफेसर थे HK कॉलेज में, अरे और सौम्य भाई ल्यूना लेके आते थे, मैं वो बस में आता था, साथ में चाय की किटली पे चाय पीते थे, वो भी हम याद करते हैं। तो सौम्य भाई ने स्क्रिप्ट लिखा है वो, और एज सुन एज पॉसिबल रिलीज होने वाला ही है। So, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो एकदम सही है। somebody else also is thinking like that. और आपकी स्टोरी को अगर मुझे एक फिल्म के डायलॉग के साथ में कनेक्ट करना है, तो बुलंदी करके एक मूवी थी राजकुमार की, जी उसमें जी राजकुमार का एक डायलॉग था जी, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बनाने से पहले खुदा खुद अपने बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आई थिंक ऐसा लगता है कि डायलॉग बिल्कुल आपके लिए बना है। Thank you very much for sharing your story. I am sure many people, not only today, because ये टेक्नोलॉजी की अच्छी चीज ये है कि अभी ये ऑनलाइन रहेगी जब तक हम लोग जिंदा है, हमारे बाद भी रहेगी। जब कोई आपका ये वीडियो देखेगा आज का जो सेशन, तो whenever somebody is stuck, किसी को फेलियर मिला है लाइफ में, स्ट्रगल कर रहा है, तो आपकी आवाज सुन के, आपकी बातें सुन के वो उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी और हर एक इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। On behalf of all the brokers who are listening and the Broker Ki Pathshala team, I would like to thank you and present a small certificate of appreciation. May I have the certificate, please? Broker Ki Pathshala and initiative by Squarefit Foundation, certificate of appreciation to express our gratitude to Mr. Praveen Bavadia, Director, City Estate Management, Ahmedabad, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. We are pleased to sponsor 100 meals under Annapurna project by Rotary Club of Mumbai, Daisar, which will provide food for the underprivileged. Today, 22nd January 2021, signed by yours truly. Please accept this certificate, Praveen bhai. And thank you, Vinod bhai. Thank you. And here, yeah, your last word, if you would like to say something. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે મને ઇન્વાઇટ કર્યો બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. લાસ્ટમાં ગુજરાતીમાં વાત કરું છું ભાઈ. અને વેટ કરજો પ્રવીણભાઈ, we are announcing the next Friday. The next Friday we are going to Goa. Goa is an amazing city. I think everyone, especially today's young generation, love to go to Goa. So please join me in episode 3 next Friday with Mr. Amit Chopra, a very senior realtor, founder and director, Escala Realty,
and he's the president of Goa Association of Realtors and governing body member of National Association of Realtor India. Looking forward to with all of you. Join me on next Friday, 5 p.m. One more Bollywood Hangama next Friday with Goa. Till then, please take care of yourself. Once again, thank you very much, Praveen Bhai and Suresh Bhai, if you are there, for your kind presence and time. So nice of you. Thank you. Thank you. Thank you.